Best. Uh, Hashmita, if you want sharing rights also, if there is any PPT or video. There is a PPT. Don't have a screen. I think I have an access to it. I can see it. Yes, ma'am, you do have the access. Yeah, I can Okay, see it. fine, fine. Thank you, Prachi. Thank you. I Good think I'll morning, Manish. put it later Wow, on. great. Joining very quick. Yes, very fast, swift. Very good morning, Nandini. I remember some names: Dhara, Nandini, Akash, Kosha, Vrushanki. Very nice. Good morning. Sunrise, very nice. Oh, yeah, great, Himangi. As I told you, we are going to have a wonderful session with for you all. Galaxy 12 also J2, very nice. I see that. Good, good. And there are few in the Akash says namaskaram and good morning to both ma'am and sir. Yes, yes. Anonymous is also there. Wow, great, great. I'm sure today you will be enjoying this session. And before we begin this session, it is imperative to introduce you to the key speaker today, and that is Miss Hashmita Ahuja. Welcome, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. And we are also joined by our dean, School of Engineering, AP Vyas sir. Just imagine the importance of the session. Deans are also here. I'm expecting Bharti madam any time to join us. Uh, so, students, without much wasting time, I take the privilege to introduce uh, Hashmita madam. Uh, before I give her a detailed thing, I just have a few things about her to say. Do what you love, to do it at your best, is the motto of this passionate entrepreneur, a certified and practicing image consultant from Image Consulting Business Institute, India, with a knowledge in educational psychology. She brings in the best of both worlds, inside, outside, for you all. Images actually blend of inner attitudes, skills, behavior, external appearance, and self-presentation. And as quoted by Dale Carnegie, if you have heard about Dale Carnegie, right? There he's a noted author. There are only four ways in which we have contact with the world. We are evaluated and classified by these four contacts. First is it's what we do. Second is how we look. Third is what we say. And fourth is how we say it. So, madam's clients include from aviation, hospitality, management, educational institutes, FMCG groups, pharmacy as well, media and communication. The list doesn't end here. It goes on to retail, banking and finance, import, export, IT, casting, engineering, and more. Right? It's very difficult to just give you the compressed list of her clients, where she takes the special sessions on image management. Apart from being a consultant and trainer, Hashmita has been on the panel of expert editor for online magazine, also the Complete Women.in, and she has covered by local and national media for her work on personal branding and image consulting. And she has trained over thousands of professionals in the past few years under her company, Pearl Image Consulting. So with a vision to bring in transition in people's life through holistic approach, thereby helping them to understand and analyze self. And in the Shield University is also very keen to help you out and build your image. And here goes Hasmita. Hasmita, please. Thank you, ma'am. That was a wonderful introduction, and you have always been warm to me. Thank you, all dignitaries present there, and thank you for providing me the opportunity. Good morning, everyone, students. I hope you all are doing good. Today, the session, I think we must have thrown the name on it. It's the magic called me. Good morning, Kosha.
So the magic called me. How many of you believe that, yeah, there is a magic in us, or we are the magic? You can just, the volume is little low. Okay, we were trying to work on that. Is that same for all of you? Students? It's cracking to Hashmita. If you can connect it to hotspot also parallelly, It is because it connected seems, with your Wi-Fi. voice is I am cracking. using Wi-Fi. I am using Wi-Fi. Okay. Okay. Is it better? Is it okay? Yeah, now it's okay. Please. It's okay now. Okay. Yeah, so how many of you believe, if you heard me there, that we are a magic in ourselves? We have magic, we have the abilities to create magic. Yes, no, you believe in the statement magic and the word magic, and how would that connect with grooming and personality, the outer looks and the image that we have? It's going to be interesting, I guess. So can we have any answers from you, students? I'll just try and... Morning. Let us keep it Could you please repeat the question in Hindi as well, because they're not able to hear and gather. ओके सो मैजिक जो वर्ड है, जादू, आप सब मानते हैं हम सब में एक जादू है, या हम सब में वो काबिलियत है कि हम जादू क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं? यस, आई एम वेटिंग आपके आंसर्स का जवाब का मैं. ओके ओके नंदिनी, अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देयर. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. हाँ, तो हम सब में एक मैजिक है, एक जादू है. वो कैसे है? ये एक इंटरनल प्रोसेस होता है जो इनसाइड आउट हम ब्रिंग आउट करते हैं. तो हम थोड़ा सा इसमें एक साइकोलॉजिकल सेगमेंट पे यूज़ करेंगे. जैसे आई थिंक देयर वाज वन मोर थिंग विच वाज had to be mentioned about me. I have just completed my therapist course from NACS Singapore. So because of that, it helps me to understand the person अंदर और बाहर से. बिकॉज अगर मैं आपको, देखिए मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड नहीं है सिंड्रेला के जैसा जो मैं आपको घुमाऊंगी और आप बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल प्रेजेंटेबल हो जाएंगे इन योर ओन टर्म्स, राइट? हमें वो अंदर से बाहर लेके आना है. जो अब अंदर से हम बाहर आ रहे हैं, इट हैज़ टू डू विद अ कॉग्निशन. कॉग्नेटिव जो होता है हमारा ब्रेन का, ये पूरा आपको पता है इसका बड़ा खेल, बहुत बड़ा रोल है इसका. पूरी लाइफ जितने भी मैंने किताबें पढ़ी हैं या जितना भी मैंने सीखा है लाइफ में, सिर्फ यही है कि यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेन, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, एंड देन द हार्ट कम्स इन. इट गिव्स यू, और इट ट्राइज टू ब्रिंग आउट दोज क्रैक्स इन योर लाइफ, हर्डर्स इन योर लाइफ. ट्रू. सो वो हम देखेंगे कि कैसे ब्रेन के साथ इज अ कंसेप्ट जो हम आज यूज़ करेंगे विच इज़ साइको साइबरनेटिक्स. एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड कुछ एक वीडियोस भी है जो हम देखेंगे. सो आई होप यू will enjoy the session. Let me try and share my presentation. You'll have to give me a yes or no for that when it's visible. Okay, there you go. It will take few minutes. Is the presentation visible? Yeah, presentation visible, but volume. My volume has gone. My No, voice. your volume is there. Does There is this no mean sound with this. Okay, There's fine. there's Fine. no transition sound Yeah, with yeah, this. sure, sure. Yeah. Okay. Once we have the video, then I'll check on it whether it's audible. Okay, so the magic called me. Let's just plunge into it, what the magic is all about. This is about my company which I run, Pearl Image Consulting. The videos are there up on YouTube, so you can just catch up on it and understand how we brand and how we market ourselves, and how you should also follow the steps and procedures. Being into industry for now more than 16 years, I think that gives you an idea of it. This is a very beautiful saying by Charles Darwin. आपको पता है चार्ल्स डार्विन कौन है? इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी ज़िंदगी में. आज जिस तरह से हम चल रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो एक समझ हम में है, उसके बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था. एनी आइडिया? किसी को पता है चार्ल्स डार्विन कौन है? नाम सुना है इनका? स्कूल में सुना होगा ज़रूर, है ना, साइंस में. सो मिस्टर चार्ल्स डार्विन जो हैं वो फादर ऑफ एवोल्यूशन थियरी. यस. Continuously the request is coming, Hashmita, of the for the voice. Please use the headphones, For the voice,
how do Use the we... headphones. Yeah. Yeah, you are getting responses. Darshan has said he's a naturalist. Yes, he is a national naturalist, and he proposed the theory of evolution. That's right, He's a Akash. biologist too. Yeah, yeah. Yes, People are reflecting there. yes. And he proposed evaluation theory. Theory of evolution, yes, which talks about the change that we have. So he said that it is not the strongest of the species that would survive, neither the most intelligent one. Now you get that, ज़्यादा जिसमें बल है वो भी नहीं और दिमागी बल है वो भी नहीं, लेकिन वो लोग सर्वाइव करेंगे जो चेंज को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे. महात्मा गांधी जी ने भी इसके बारे में कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी. सो इट्स अबाउट चेंजिंग, एक्सेप्टिंग आवरसेल्व्स, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. आई होप आप इन सबसे सहमत हैं कि हाँ, हमें अपने आप को टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए. मेरे ख्याल से नोकिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने इंडस्ट्री में, विच सेड दैट उनकी एक लास्ट स्टेटमेंट Ashmita, your voice is, sorry to disturb you. आई एम Your voice वर्किंग is ऑन दिस. cracking a lot. Net issues are there, and we are joined with Dean School of Science, Bharti Madam. So, good morning, Madam, and Good morning, Hashmita. Good morning, ma'am. Good morning. Some net issues. My pleasure. It's my pleasure to meet you again. It is a pleasure always, ma'am. I'm glad you remember. Thank you. Please continue. Yeah. So just a second. Let me just check on. Yeah, we can wait for a while. Yeah, one second. Yeah, sure. हाँ दर्शन, यू आर राइट कि साइंस में सुना था कि इवैल्यूएशन तब सुना था ना. ग्रेट. आई सी गुड रिफ्लेक्शंस. ही प्रपोज्ड इवैल्यूएशन थ्योरी. Good. And today I also welcome students from hospital management if they have joined. Very soon we are going to commence our classes too, and we are joined by some students from environment, health and safety as well. So I welcome them as well, because today being a special session, we thought of inviting you as well. So all of you are welcome to this special session, which we have kept for all our students of BSc, MSc and engineering. And we thought that if you are available and free, you can join this as well, because it is very, very important for you all. Of course, net issues are hampering and hindering, the flow of the session, but please bear with us. Thank you so much. Okay, so I've connected to the mic. Is it audible now? Now it is better. I think. Can I ask Prachi ma'am? Prachi, how is this? Yes, ma'am, it is audible. Proper. It is audible. Okay, great. Thank you. Okay. Students, you also can say, some of you can repeat. Can you hear me now better? Students, can you? Am I audible now? Am I better now? Try connecting. Oh, yes. Radha says yes, it is better. Yeah, most of them have said. Can we go ahead with Yeah. this? Yeah, please. Okay, great. Right, so we were talking about Charles Darwin. Ma'am, you wanted to finish up something you started? Namrata ma'am? No. In the meantime, I was just sharing. Okay, so that is right. So it is about the change. So हमें भी वही करना है, change अपनी ज़िंदगी में एक जो बदलाव है वो time to time लेके आना है. उसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है that we have to do is accepting that there is a need for change, right? So how will that happen? Let us see. We know all of them. They are the personalities of a society coming from different walks of society. They have made a name for themselves in life, and all of them are known for some or the other great things that they have done. So we have Mother Teresa on the list. These are the ones which I feel, and all of us can have a different opinions about it, right? We have Mr. Ratan Tata. I would want to ask one thing. Barack Obama and the person there, I don't know if you can see my कर्सर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर. आपने सुना है इनका नाम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर? ये जो हैं, आई वुड वांट टू मेक वन स्टेटमेंट अबाउट दिस. अगर ये कभी सोचते नहीं, ड्रीम नहीं करते, एक चेंज के बारे में नहीं सोचते कि एक जो ब्लैक है, नॉट बीइंग रेसिस्ट है, अमेरिका को जाके रूल करे, तो उनकी एक बहुत ही फेमस स्पीच थी विच वॉज आई हैव अ ड्रीम. ये उनका एक सपना था जो
वो कंसिस्टेंटली लोगों में बोलते गए, करते गए। और इफ़ यू गेट अ चांस इनके बारे में प्लीज़ पढ़ना, तो शायद बराक ओबामा कभी यूएस के प्रेसिडेंट ना होते। सो इतना फ़र्क इतना डिफरेंस पड़ता है एक इंसान के चेंज सोचने से, थॉट से, बिहेवियर से, जिसकी वजह से एक पूरी सोसाइटी में एक नया बदलाव आता है। मदर टेरेसा भी अपने आप में, वी नो शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, द वैल्यूज़ दैट शी हैड, स्टीव जॉब्स and Mahatma Gandhi. Again, about the change. So be the change you want to see in the world. That is what they have said us. Now, all of us in life, the ultimate goal for all of us in life is to be successful. Do you all agree with me? I am putting my hands up there and raising my hands up there. Yes, I want to be successful in life. I may be successful, but then there's always greed for more, right? So the ultimate goal for all of us is to be successful. To be successful in life, I believe there are two things that need to happen, right? It is, you must first get a chance to do something, and second, when you get a chance to do something, you should perform with your full potential. एक तो मौका मिलना चाहिए, और फिर वो मौके पे आपका वो चौका या छक्का भी लगना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब साथ में होंगी, और ये बहुत अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं आती है, और उस पर परफॉर्म करना। कई बार होता है हम वेट करते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें मिलेगी, लेकिन एट टाइम्स हम उस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते होंगे? बिकॉज शायद हमारी वो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं, एक्सपीरियंस जो कहीं ना कहीं है, वो लैकिंग हो जाता है। सो ये दोनों चीज़ें जब साथ में होती हैं, तब 100% हमारी सक्सेसफुल होती है। अब परफॉर्म करना, जब आपको मौका मिलता है, वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। वो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गया, हमारे एक्सपीरियंसेस हो गए, एंड हमारे सॉफ्ट स्किल्स हो गए। सो 3 चीज़ें जो हमारे पास हैं। लेकिन वो मौका कैसे मिलेगा हमें? अब इतनी भीड़ में हैं हम, इतने लोगों के साथ चल रहे हैं, और हमें चुना जाता है, वी आर बीइंग चूज्ड। जब जॉब्स के लिए है या कहीं भी जा रहे हैं, इवन हमारा स्टार्टअप, अगर हम खुद का कंपनी भी खोलते हैं, तो उसमें भी हमारे क्लाइंटल्स हैं बहुत सारे। सो वो चूजिंग प्रोसीजर जो होता है, तो हम एक लाइन में लगे हुए हैं, है ना, भीड़ में है, एक भीड़ का हिस्सा है। उसमें से हम बाहर उभर के कैसे आएंगे, निखर के कैसे आएंगे? जब हमारा पर्सनल प्रेजेंटेशन, हमारा ब्रांड नी स्ट्रॉन्ग होगा मार्केट में। आज ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इट इज़ इन सिंपल वर्ड्स, जो दिखता है और जैसा दिखता है उतना ही ज़्यादा इट सेल्स आउट, एंड वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग आवरसेल्व्स आउट सो दैट पीपल वुड परचेस आवर स्किल्स। हमारे जो बिहेवियर्स, एक्शंस हैं, जिसकी वजह से हम मेहनत करेंगे, एंड देन वी गेट द रिस्पॉन्सेस बिहाइंड दैट। What exactly is the personal brand? It is something which differentiates us from others. एक ऐसी चीज़, और हम सब में वो एक खूबी है, लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है ये समझने में कि वो क्या चीज़ है जिसमें हम बेहतरीन हैं। सो इट इज़ दैट वन थिंग विच इज़ डिफ्रेंशिएटिंग अस from others, that only we are best at. And if we identify that, we work on that, we hone our skills on that, we are surely going to go ahead and far behind. So हमने जो स्लाइड पे जिन लोगों के नाम देखे थे, उन सब ने वो कहीं ना कहीं एक चीज़ अपने बारे में ज़रूर रिकग्नाइज की, और उसकी वजह से आज वो हमारी स्क्रीन पे थे। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है एक्चुअल में? आपने ये नाम सुना है, पर्सनल ब्रांडिंग, ब्रांड क्या होता है? वर्ड सुना है पहले भी? Yes, no? पर्सनल ब्रांडिंग, सो पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली खुद को ब्रांड करना। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब मैंने आज अपनी इमेज बना दी, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलते रहने वाला। ऐसा नहीं है लाइट का स्विच ऑन कर दिया, बस काम हो गया। आपको अपने आप पे परसिस्टेंटली टाइम एंड अगेन काम करते रहना पड़ता है। किस चीज़ पे करेंगे आप? कि हम एक अपनी इस्टेब्लिश्ड प्रिस्क्राइब इमेज बना सकें लोगों के सामने, इम्प्रेशन। अब ये एक इंसान हो सकता है, एन इंडिविजुअल, एक ग्रुप हो सकता है, या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। सो वी हैव बीन एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच आर अ ब्रांड इन देमसेल्व्स, राइट? सो वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट, और उनको सालों लग गए ये चीज़ करने में, और मेंटेन करके रखना अगेन इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। एक तो बना लिया, ऊंचाई पे पहुंच गए, और उसको वहाँ पे बना के रखना इन इटसेल्फ, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस टाइम एंड अगेन। ओनली द चॉइस इज इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। Let's see what it says more about. So there was a wise man and he's a very well known person. I'll give you his name. उन्होंने एक बार कहा था कि अगर किसी से पूछा जाए कि आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना हो, तो वो
किस चीज़ में कर सकते हैं। और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वो, उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका जवाब था, अगर किसी को इन्वेस्ट करना ही है किसी चीज़ में, सो उन्हें अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके जो रिटर्न्स आएंगे उससे बेहतर रिजल्ट्स और कुछ नहीं हो सकते। सो अपने आप में इन्वेस्ट करना इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट विच वन कुड डू। ये जनाब कौन थे? वॉरेन बफेट। इनका नाम हमने सुना है, जाने माने नामचीन है, and he is one of the philanthropists. He has an organization, a huge company, he runs a group of companies there. So और इन्वेस्टर, बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टर माने जाते हैं वर्ल्ड में। सो उन्होंने कहा था कि अपने आप का इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट होता है। आपके हाँ ना येस नो जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा, या कोई आपको लगता है कहीं पे भी, कैन जस्ट पुट अप योर क्वेरीज। आगे बढ़ते हुए, अब हमें अगर अपने आप में इन्वेस्ट करना है और हमें पता है कि हमें हमारी पर्सनल एक ब्रांड है वो बनानी है, इमेज बनानी है, तो उसके लिए एक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। कोई भी चीज़ करने के लिए आपको, अब अगर आज डिग्री लेनी है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है ना। आप पहले एंट्रेंस के लिए ट्राई करेंगे, फिर एग्जामिनेशंस होंगे आपके, इंटरव्यूज़ होंगे आपके, उसके बाद आप डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करेंगे एंड देन उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी। सिमिलरली कोई भी चीज़ करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। हमारी ब्रांड बनाने, हमारी इमेज बनाने के लिए भी एक प्रोसेस है, एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, जो स्ट्रैटेजी वाइज, स्टेप वाइज हमें जाना चाहिए चीज़ों को लेके। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो हम घुमाएंगे सिंड्रा की स्टोरी में, अंदर से वो बाहर लाना है। सो ये कंसेप्ट उसी के बारे में बात करता है। अंदर जाके झांक के हमें देखना है कि हम में वो क्या खूबियाँ हैं। जो हमने डिफ्रेंशिएट का एक वर्ड वहाँ पे देखा था, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग करती है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है? अपने साथ बैठने पर। अब कौन यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे इस सवाल का जवाब आता है, मुझे पता है कि हु एम आई, हु एम आई, यू नो हु यू आर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दैट वी कैन एवर हैव। दूसरों को जानना, उनको क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, बट टू अंडरस्टैंड हु वी एक्चुअली आर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एज आई सेड, जितने भी आज तक मैंने बुक्स पढ़े हैं ना, तो वो सारे लोग जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट जो बुक्स हैं, वो एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं। वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, उन्होंने क्या सीखा, कैसे एक्सप्लोर किया चीज़ें, तो खुद के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो खुद को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट, नोइंग हु वी एक्चुअली आर एज अ पर्सन। अब स्पिरिचुअलिटी और साइंस इस बात पे साथ में आती है। बहुत कम होता है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और साइंस साथ में आए, लेकिन साइकोसाइबरनेटिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे दोनों, स्पिरिचुअलिटी भी, हमारा रिलीजन है, बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं वो, और हमारी साइंस, दोनों इस चीज़ को एक साथ मिला के मानती हैं, वो चीज़ को समझती हैं और इस चीज़ को एक इम्पॉर्टेंस देती हैं। तो वो प्रोसेस कहलाता है सेल्फ एनालिसिस प्रोसेस का। साइकोसाइबरनेटिक्स एक थर्मोस्टेट की तरह होता है हमारे दिमाग में। आपको मैं एग्जांपल देने के लिए एक स्लाइड दिखाऊंगी आगे, सो यू कैन जस्ट वेट फॉर इट। इट इज़ लाइक अ थर्मोस्टेट। सो यू हैव अ सेल्फ इमेज फॉर योर सेल्फ इन योर माइंड कि मैं इस तरह से दिखता हूँ, इस तरह से मेरी आँखें हैं, फिजिकल सेल्फ है, और ये मुझ में आता है। सो अगर आपने कभी ड्रीम्स आप देखते हैं, सपने देखते हैं, आप अपने आप को स्टेज पे देखा होगा खड़े होके वो अवार्ड रिसीव करते हुए, या किसी बेहतरीन चीज़ में, या कुछ ऐसी चीज़ करते हुए जिसके लिए लोग क्लैप कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं आपको, या अपना सपना पूरा होता है, तो आप क्या करते हैं? उसको विजुअलाइज करते हैं। तो वो आप अपने आप को देख रहे हैं वहाँ पे। तो उसी तरह से अपने बारे में आप एक धारणा बना के रखिए। आप लोगों ने, हम सब ने एक धारणा अपने बारे में बना के रखी है अपने माइंड में, वो है हमारी सेल्फ इमेज हमारे बारे में। लेकिन दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो है हमारा ब्रांड। सो वो डिफरेंट है वहाँ पे। सो ये थर्मोस्टेट क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं। Excuse me. Can you see the screen? Is the screen visible? The presentation is visible? Yes. Yes, Akash. He started with the big moment in America. Yes, Akash. That's true. Oh, I would love to meet you, Akash. We'll talk more on that. इसके बारे में मैं आपको बता रही थी अभी कि हमारा बॉडी में सेल्फ इमेज, बर्थ
साइकिल ऐसा ही होता है ज़िंदगी का, हम सब फंसे हुए हैं इस चक्कर में। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक मेरी छोटी सी थ्योरी जो मैंने निकाली, आप साइकोलॉजिस्ट के साथ या थेरेपिस्ट के साथ डील करेंगे ना तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स लाइफ के बारे में बताएंगे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारे साथ, पता है क्या हो रहा है, ये दो जगह है हमारी, ये दो, एक यहाँ तो कॉलेज ले लो आपका, एक घर ले लो, तो हम क्या कर रहे हैं पता है, ऐसे, एंड देन थोड़ी देर बाद वो हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं और हम बस, हाउ डू आई लुक, कैसी लग रही हूँ मैं ऐसे करते हुए, बट ये हमारे साथ होता है। एक स्टैगनेंट पोजीशन लाइफ में आ जाती है, एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे हम बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, तो एक ब्रेक लाना है, मोमेंट लाना है। उसके लिए हमें ये सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो एक चार्ट ऊपर जाता हुआ है वो कैरी करना है। कैसे होता है, बर्थ से लेके गोल्स तक लाइफ हमारी ऐसी है, और गोल्स हमारे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, अबाव एंड ऑल। तो वहाँ पे एक तो ये हो गया बर्थ से लेके गोल्स तक। दूसरा हमारा एज और एक्सपीरियंस जो है साथ साथ प्रभावित करता है इस चीज़ को। सो व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट वी हैव अ बॉडी इमेज, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो एक बॉडी इमेज एक इंसान की कौन सी एज में बनती होगी। एनी आंसर्स ऑन दैट, टेक्स ऑन दैट, कोई रैंडम कब होती होगी बॉडी इमेज हमारी, कब बनती होगी लाइफ में, पता है आपको? छोटे बड़े कब से, बर्थ के पास है तो इतना हम लगा सकते हैं अंदाज़ा। I am thinking that you're typing, so there's a pause on that. Someone said Yes, yes, yes. teenage. Yes, I can. Teenage, yes. ओके ओके, 18 प्लस। अब देखो मैं बता रही हूँ बर्थ के पास में है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्या हो सकता है। ओके गुड रिस्पॉन्सेस, ठीक है, ग्रेट। अब बर्थ के पास अगर है, सरप्राइज हो जाओगे, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था 10-15 साल पहले, जब हम एक छोटे इन्फेंट होते हैं ना, कई बार इवन अ फीटस इन मदर्स वूम, आपने बच्चे को देखा है, सोनोग्राफी 3D सोनोग्राफी होती है, या जब बच्चा पैदा होता है वो अपना थंब में से देख रहा होता है, आप उसको हाथ देंगे वो आप पकड़ेगा, फिंगर्स से पकड़ेगा, वी फील, हमें लगता है कि वो खेल रहा है। उनके पास लैंग्वेज नहीं है बताने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए चीज़ें, बट उस समय उनके पास एहसास है, दे आर ट्राइंग टू फील देयर बॉडी, कि मैं, ये मेरा थंब है, आप उनको गोद में उठाओगे ना ऐसे नोज पे हाथ लगाएंगे, सो दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। सो साइकोलॉजी सेज दैट अ बॉडी इमेज ऑफ अ पर्सन स्टार्ट्स और बिल्डिंग अप फ्रॉम द टाइम व्हेन वी आर बॉर्न एज एन इन्फेंट। इन्फेंट कब होता है, 0 से 2 ईयर्स की एज में जो होता है, वो टाइम में, अब सोचो उस टाइम में हम अपना बॉडी इमेज बनाने लगते हैं, हमारे पास एहसास, वो फील कर रहा है, उसके पास, जैसे मैंने बताया कि वो शब्द नहीं है, लैंग्वेज सीखी नहीं है उसने अभी, है ना, इसलिए वो बता नहीं पाएगा, बट वो समझ रहा है, सब समझ रहा है। देन कम्स योर सेल्फ इमेज। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे ग्रेजुएट होते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा सा लाइफ में, छोटे बच्चों को अगेन देखा है, मिरर के सामने खड़े होके, बॉयज़ होंगे तो वो शर्ट पहनते हैं, कॉलर अपना बनाते हैं, गर्ल्स होंगी तैयार होंगी मेकअप में, वो बचपन से उनमें आदत होती है, और बोलते हैं घर पे आसपास वाले लोग भी दिल से, देखो लड़कियों के जैसा कैसे इन अंदर से ही उसमें आ गई ना सब आदतें और खूबियाँ, या लड़कों के जैसा तो माचो एंड ऑल टाइप है। दैट इज सेल्फ इमेज, यू सी योर सेल्फ इन योर मिरर, एंड देन अपने दिमाग में एक धारणा आप बनाते हो। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करी अगर स्लाइड पे, ये दो एरोज है ना, ये जा रहे हैं, ये 2 वेज एरोज हैं, राइट, देयर 2 वेज, सो इट्स गोइंग एंड कमिंग। सो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम गिर के वापस नीचे भी आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, एक्सपीरियंसेस होंगे जिसे हम रीलर्निंग का प्रोसेस कहते हैं, है ना। सो सेल्फ इमेज बन गई तब हमारी, फिर उसके बाद जब हमारी सेल्फ इमेज है, फिर हमें पता है कि अब हमारी वैल्यू क्या, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ एस्टीम। यहाँ पे सेल्फ एस्टीम क्या होता है, व्हेन वी नो कि हमारी वैल्यू क्या है, मैं ऐसा दिखता हूँ या ऐसी दिखती हूँ, मेरे में ये खूबियाँ हैं, तो अब मुझे पता है कि मेरी वैल्यू क्या है। ममा मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ, या ममा मैं कार रेसिंग्स, बाइक्स में, या वीडियो गेम्स बहुत अच्छा खेलता हूँ। सो वैल्यू, वर्थ पता लगती है, एज के हिसाब से अलग अलग होगी, छोटे बच्चे के लिए वो होगी, हम बड़े होंगे हमारे लिए हमारी एस्टीम कुछ और लेवल पे जाएगी, जैसे जैसे हमारे स्किल्स डेवलप होंगे, है ना। उसके बाद जब हमारी वैल्यू, एक इंसान को एक चीज़ की जब वैल्यू पता चल जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, आपको पता है।
तो अब मुझे पता है मेरी वैल्यू ये है, हाँ मैं तो इतना वैल्यूबल हूँ, तो मुझ में अब कॉन्फिडेंस आने लगेगा, डेवलप होने लगेगा। सो अगेन जब आप अब कॉलेज में जब पास आउट होते हैं, आप देखना फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, आई थिंक फैकल्टीज इस बात के साथ सहमत होंगे और दे कैन रियलाइज कि उनमें एक वास्ट डिफरेंस होता है उनके एक कॉन्फिडेंस लेवल में, जैसे ही व्हेन दे एंटर एंड द टाइम व्हेन दे आर ग्रेजुएटिंग और मे बी दे आर पोस्ट ग्रेजुएटिंग। सो द कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी डिफरेंट, वी कैन मेक दैट आउट। यस, सो दैट कॉन्फिडेंस, एंड देन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जॉब मार्केट में जाएंगे, अब मेरे पास कॉन्फिडेंस है, अब मैं तैयार हूँ, अब मैं कॉम्पिटेंसी लेवल पे हूँ, अब मैं कम्पीट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं, अब उसको मैं काम पे लगाता हूँ। सो दैट इज़ सेल्फ कॉम्पिटेंसी, लेट मी टेस्ट माई स्किल्स। मुझे मेरी वैल्यू पता है, मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया, अब मुझे इसको टेस्ट पे डालना है। तो ग्रेजुएट हो रहा है, एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ देखो बढ़ रहा है। फिर एक स्टेज आती है लास्ट में, सो दिस इज़ वेरी डीप, इसमें बहुत, दिस इज़ अ वेरी प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट और बेस है, ये कोर है हर चीज़ का, इंसान ह्यूमन लाइफ का, दिस इज़ कोर ऑफ इट। इट्स अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल, जिसके लिए हम सब, आई डोंट नो अगर मैस्लो की थियोरी के बारे में आपने पढ़ा है या सुना है कहीं पे, मोटिवेशनल थियोरी, ये स्टेट मैं कहती हूँ सिंपल वर्ड्स में बाबा स्टेट, वेर यू रीच अ लाइफ यू फील दैट एवरीथिंग नाउ इट्स टाइम टू गिव अवे। आपने सब पा लिया है, आपके पास सब है, आप बहुत ही कंटेंट हैं, हर चीज़ से संपूर्ण हैं, अब टाइम है आपका सोसाइटी को वापस देने का। आपने एक्चुअलाइज कर लिया है, समझ लिया है, रियलाइज़ करने के बाद कि मैं क्यों आया हूँ इस लाइफ में। बहुत कम लोग हैं हम में से जो इस लेवल पे पहुँच पाते हैं लाइफ में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपने 3-4 साल पहले एक 12th का बच्चा था जिसने टॉप किया था, ही वॉज अ जैन किड, और उनसे जब इंटरव्यू लिया गया उनका और उनसे पूछा गया कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में, ही सेड दैट आई वांट टू बी अ मॉन्क। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस बच्चे में एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आया था। सो नॉट नेसेसरी कि अब अगर, जैसे मैंने कहा ना, गिरने, आगे बढ़ना और गिरना, ये 2 वेज एरोज जो है, सो दिस इज व्हाट इट इज। सो ही मे बिकम, ही मे रियलाइज, ही मे कंटिन्यू विद इट, और ही मे कम डाउन एंड ही मे रियलाइज दैट आई वांट टू कंटिन्यू इन लाइफ। इट हैपेंस दैट वेज। ऑलराइट, लेट्स गेट ओके। इस पे तो मुझे जवाब चाहिए, पता है हमें ये कौन है, वेरी फेमस, एंड देन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैजिक कॉल्ड मी, सो अलादीन एंड जिनी है। ओके ओके मैम, आई ट्राई टू कीप दैट स्लो। अलादीन है, जिन है, जिनी, यस, ग्रेट। अब जो हमने साइको साइबरनेटिक्स का कंसेप्ट लिया था, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझाती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि कौन किस पार्ट, क्या पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। अब एक आपको ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट सिस्टम बताया था मैंने, तो सिस्टम क्या है, सेल्फ इमेज मेरी किसी चीज़ के बारे में है कि मैं ऐसा दिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ले लो, मुझे पतला होना है, ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन दैट, तो मैं डाइट करूँगी, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाऊँगी, कीटो डाइट डेली, और बहुत सारे पता नहीं क्या क्या है, जैसे मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया मुझे पता चला बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देखा कुछ टाइम तक वो ठीक चलता है, बट देन आई फॉल बैक। तो जब तक मैं अपने दिमाग में, क्योंकि मेरे एक सेल्फ इमेज मेरे बारे में बनी हुई कि अभी मैं, आई एम हेल्दी पर्सन, आई एम नॉट फिजिकली फिट मे बी और गुड इनफ टू लुक। सो वो एक सेल्फ इमेज मेरे बारे में, मेरी एक धारणा बनी हुई है मेरे बारे में, जब तक मैं उससे नहीं तोड़ूंगी मैं एक्चुअल में वो चीज़ नहीं पा सकती। सो आई हैव टू ब्रेक दैट इन साइड आउट थिंग। तो जैसे ही मैं अचीव करने जाऊंगी ना, एक थर्मोस्टेट बजेगा जो साइको साइबरनेटिक है, जो मुझे बोलेगा कि नहीं बट आप मोटे हो अभी, सो फिर मैं फॉल डाउन करूँगी। ड्राइविंग सीखना है अगर हमें, तो जब तक आप खुद को देखोगे नहीं ड्राइव करते हुए, सपने नहीं देखोगे, ड्रीम नहीं करोगे, या आपको जैसे मैंने बताया स्टेज पे खड़े होकर अवार्ड रिसीव करना है, खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है, किसी बेस्ट कंपनी के साथ काम करना है, सो स्टार्ट सीइंग दैट वे। इमेजिन अपने आप को उस तरह से करो, और इतना इमेजिनेशन आप कर लो कि आप वो रियलिटी और इमेजिनेशन को एक साथ ला लो। अब जो हमारा माइंड है ना, तो एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है वो मुझे बोल रहा है, ठीक है, तुम्हारे सामने खाना है, प्लेट है, सबकॉन्शियस माइंड में मुझे पता है कि मैं मोटी हूँ, तो मैं भले ही कितना कॉन्शियसली करूँगी ना, लेकिन वो सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं हावी हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड हमसे बहुत ज़्यादा, जो कॉन्शियस माइंड है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसमें बहुत ताकत है, लेकिन वो सुनता कॉन्शियस माइंड की ही है।
Are you getting that? So we have to rub and rub and rub again and again and again to give the instructions to subconscious mind, हमारे सेल्फ इमेज और इनर इमेज को, कि हमें ऐसा बनना है, हमें ये करना है. एक छोटी सी स्टेटमेंट सुनी होगी, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल, आई कैन आई विल. दैट इज़ अ रिपीटेशन. आप अपने आप को सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे ये करना है. सो इनमें से आइडिया कोई कि सबकॉन्शियस कौन है और कॉन्शियस कौन है? यस, कौन होगा सबकॉन्शियस इसमें से, और कॉन्शियस कौन होगा? लेट्स सी देयर. सो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा जीनी है, और कॉन्शियस माइंड जो है हमारा अलादीन है. पावर जो है करने की शक्ति संपूर्ण सबकॉन्शियस माइंड में, और इस पे स्पिरिचुअलिटी भी हमारा साथ देती है, वो भी इस बात को मानती है. इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं वहीं से निकल के आता है. और कॉन्शियस माइंड जो है हमारा वो अलादीन है. वो चिराग को घिसेगा, जीनी बाहर आएगा, और उसी के बाद वो घिसना जो प्रोसेस है, इट हैज़ टू बी रेगुलर, है ना. वो एक बार घिसने से जीनी नहीं आता. यू हैव टू रब इट अगेन एंड अगेन. That is how it works. It's a very basic understanding of cyber psychonetic जो हमारा सिस्टम है, जिसमें और बहुत डीप हम अंदर जा सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं हमें अंदर से. एक कॉग्निटिव ट्रायंगल हमारा होता है, और अब आप ये देखना हमारे साथ ये होता है. It says that the way we feel will affect, the way we think will affect the way we feel, we act and behave, and others react or response to us. हमें एक मीटिंग में कहीं जाना है, ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट जो हम हर चीज़ में लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. एम आई ऑडिबल properly? The presentation is visible? Going too fast or slow? I would love your comments on that, because I'm just in mode of. Okay, okay, great, great, okay, great, thank you for responding. I love that. Complete. Great. अब ये ना छोटा सा एग्जाम्पल इसका बताती हूँ आपको मैं. क्या होता है, मुझे कहीं जाना है और उस चीज़ के लिए मैं लेट हो गई. अब पहले मैं क्या कर रही हूँ, सोच रही हूँ आज लेट हो गई, मैं लेट हो गई, मैं बार बार घड़ी देख रही हूँ, मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गई. मैं अब देखो वापस वहाँ पे वो जीनी और अलादीन आ गया, ठीक है. तो वो बता रहा है कि आप लेट हो गए. फिर आप फील करने लगते हो, अब मैं लेट हो गई, अब इसकी वजह से ऐसा होगा, फिर वहाँ पे जाऊँगी मैं, अब काफ़ी सारी चीज़ें स्पेल आउट हो जाएंगी. जो मुझे करनी थी चीज़ें, मैंने सोचा था जाते हुए पेट्रोल भी भरा लूँगी, या कहीं पे रुक के थोड़ा सा स्नैक्स भी ले लूँगी, तो वो नहीं हो पाएगा. तो मैं साइक कर रही हूँ अपने आप को वहाँ पे, ठीक है. मैंने सोचा, मैंने फील किया, और मैं उसी तरह से हड़बड़ाहट में चलूँगी भी. आप देखोगे जो हम पहला एक्शन क्या करते हैं, ट्रेन भाग रही होती है या एयरपोर्ट पे लेट, वी रन. दैट इज़ व्हाट वी डू. सो हम एक्ट और बिहेव भी उसी तरह से करने लगेंगे. अब हम एक्ट और बिहेव करेंगे तो दूसरे हमको देख के कोई भाग रहा होगा, पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी, ये लेट हो गया है कहीं पे जाने के लिए, राइट. वो एक्शंस की वजह से. और हमें जब लोग देखते हैं, उनका जो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड आ रहा है, उसकी वजह से हम और कॉन्शियस हो जाते हैं. मैं भाग रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं लेट हो गया. सो हम साइक कर देते हैं अपने आप को. सो इट इज़ हियर, the way you think will affect the way you feel, you act and behave, and others react and respond to you. Are we all okay with that? This is what the cognitive cycle does to us. हमारे thoughts जो हैं इफेक्ट, और ये साइकिल है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, इसको हर चीज़ में अप्लाई करके देखो लाइफ में. इसीलिए अंदर से बाहर, ट्रेन योर ब्रेन, कंट्रोल योर माइंड, वर्क ऑन इट. डू यू ऑल एग्री विथ मी ऑन दैट? सो थॉट्स, फीलिंग्स, and then behavior, that is how the action, and then behavior की वजह से again thoughts impact होते हैं. So this is a beautiful circle of life that we all are again lost into. So you have to send the signals finally, and then only the genie will listen to us. So you have to psych and happiness. ये एक आइसबर्ग की तरह है. हमें आइसबर्ग प्रिंसिपल पता है कैसे होता है, टाइटैनिक में जो हिट किया था जहाज़ को. सो क्या होता है एक्चुअली, चीज़ें कुछ हैं हमारे बारे में जिसके बारे में हम एक इंसान है, उसका हम कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा जो विजिबल पार्ट है वो बहुत ही थोड़ा सा मिनिमम पावर होता है. अंदर से अंदरूनी जो चीज़ें होती हैं, ताकतें, शक्तियाँ, अगेन आप देखो जीनी अलादीन में, सो वो बहुत सारी होती हैं हम में, और वो हमें आइडेंटिफाई करनी है. सो वट एवर इज़ विजिबल आउटसाइड, जो हमारा प्रेजेंस है. अब आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए आई अंडरस्टैंड,
फिजिकली आपको जो है पर्सनालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसमें जाके अगर आप अपने आप को प्रेजेंट वैसे नहीं करोगे, वो मैच अगर नहीं होगा, पैरेलल में नहीं होगा, बोलोगे नहीं सही चीज़ें, तो आप संपूर्ण पूरी तरह से दैट डजंट गिव यू द कंप्लीट सक्सेस देयर, राइट. सो इट हैज़ टू बी इनसाइड आउट. अगर हमें फिजिकली बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत ही वाइबल है, यू हैव टू ऑल्सो जस्टिफाई द इनर पार्ट ऑफ इट. सो नॉट अवेयर क्या चीज़ें हमारी, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे अजम्पशंस हैं. यू नो व्हेन आई गो फॉर ट्रेनिंग्स कॉर्पोरेट्स में भी, सो आई आस्क देम कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका पैशन क्या है. कोई भी चीज़ को समझने के लिए या करने के लिए एक तो लाइफ में यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट दैट यू आर पैशनेट अबाउट. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, but it will put thoughts or question marks in a lot of our minds. At point of time, even I keep self asking myself, so what is it that I'm passionate about? So you have to understand, ask that for yourself कि मैं किस चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मेरे एथिक्स क्या है, मेरा कोर क्या है, इसके बारे में शायद हमें, और ये हम कब पता चलेगा, जब हम उसे समझेंगे और फिर बाहर दिखाने की कोशिश करेंगे. अवेयर है हमारा बिहेवियर क्या है, जो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बाहर नज़र आता है, ऐसी चीज़ें जो विजिबल हैं, जो नज़र आ रही हैं. सो दैट इज़ द आइसबर्ग. जो नज़र आ रहा है वो एक छोटा सा टिप है, और एक इंसान अंदर बहुत चीज़ें उसमें भरी पड़ी हुई हैं. हमारी इमेज, इन सब का एक पूरा सारांश यही है कि हमारी जो इमेज है, जो पर्सनल ब्रांड है, वो इनसाइड आउट है. अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए, अंदर भी उतनी ही रूटेड ग्राउंडेडनेस. यू नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई टेल अ स्मॉल स्टोरी अबाउट मी. तो आपके लाइफ में आपके पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं और रिलेटिव्स, पीस हैं, आपको सलाहें देते हैं, बातें बताते हैं. My dad, he gave me one advice in life. He said, beta, we two sisters, so do whatever you want to do in life, go wherever you want to, you'll get two paths. One path you will find is this, so taking. Second path will be this. सो एंड देन ही गेव मी दोज चॉइसेस एंड ही लेफ्ट इट टू मी कि भाई देखो आप सेलेक्ट करो आपको क्या करना है. सो आई डोंट नो, नाउ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर सेल्फ कि ये क्या हो सकता है. अब हाथ में कुछ चीज़ है, झुक रहे हैं, और दूसरी एक है जो हम तालियां बजा रहे हैं. फॉर मी आई थॉट दिस फर्स्ट वन, जो एक्सेप्टेंस लेना, एहसास करना, रूटेड रहना, ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है, दैट वॉज डिफिकल्ट. सो I always try to choose the first path. It may not, now when I say this, when I'm holding this, I don't know if you're able to see it. So this is an award, and what is an award for you? That acceptance of things. Award क्या होता है, आप accept कर रहे हैं कि आपने किसी को लाइफ में अवार्ड ऐसे लेते हुए देखा है, यू नो, दृढ़ता से, एंड देन बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग से. ऑलवेज हम्बली यू एक्सेप्ट इट. सो इनसाइड यू हैव टू गो इनसाइड आउट. योर इमेज इज़ योर इनसाइड आउट. जितना अंदर भरा हुआ होगा ना, पेड़ भी जैसे हम, आपको पता है, जितना भला पूरा पेड़ होगा वो झुका हुआ होगा उतना ज़्यादा. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन लाइफ. आई होप यू एग्री विथ मी ऑन दैट. अब वो स्ट्रैटेजिक प्रोसीजर करने के लिए क्विकली लेट अस सी कि कैसे हम करेंगे. सेल्फ एनालिसिस करेंगे, हम खुद के साथ बैठ के समय बिताएंगे. आपको स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, स्वॉट पता है आपको, स्वॉट का नाम सुना है आपने, एक टूल है. सो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, जो टूल्स हम यूज़ करते हैं. जैसे हम इमेज कंसल्टेंट्स हैं, सो वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ क्लिनिक्स, बिकॉज वी आर इमेज डॉक्टर्स, दैट इज़ वॉट वी टेल. सो हम क्लिनिक्स यूज़ करते हैं जो हमारे कॉन्सल इंस्टीट्यूट USA से आते हैं, एंड ऑन बेस्ड ऑन दोज क्लिनिक्स वी टेक पीपल थ्रू इट. सो कैसे किया जाता है वो, अब सेल्फ एनालिसिस करेंगे खुद के बारे में. क्या पता करेंगे, पहले तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है. मिस्टर कार्ल जंग्स जो हैं और कार्ल रॉजर्स, इन्होंने पहली बार ये कंसेप्ट लाया था सेल्फ कंसेप्ट का, और उस पर फिर बहुत सारी और रिसर्चेस हुई हैं. ये क्या कहता है, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में है हमारा थॉट, हमारे खुद के परसेप्शंस के बारे में, हमारे बिहेवियर्स, हमारी एबिलिटीज़, वो डिफरेंट वर्ड याद रखना, यूनिक क्वालिटीज़ हमारी क्या हैं, वो एक मेंटल पिक्चर, वो हमारे बारे में. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन. आई एम गुड एट दिस थिंग्स, आई एम नॉट गुड एट दीज थिंग्स. सो मेरा स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, जो हमारा स्वॉट है, वो पहले. दिस इज़ लाइक अ मेज व्हेन यू गेट इनटू इट. पहले सेल्फ इमेज हमारा, एक हमारा आइडियल सेल्फ. अब कई बार हमारे मेंटल में हमारे बारे में एक सेल्फ इमेज है, एक पिक्चर है, और हम उसको कैसे बाहर दर्शाते हैं और लोग उसे कैसा समझते हैं, इसमें बहुत डिफरेंस होता है. ये एक नहीं है, इट इज़ नॉट द सेम.
lot of times our self image, what I think about myself, my actions may not be saying that, my behavior, my responses will not be saying it, because बाहर की चीज़ों की वजह से मैं इम्पैक्ट हो सकती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में क्या है, हाँ मैं ये चीज़ हूँ, ठीक है। अब अगेन सेम एग्जांपल हो गया, पतला होना है, नौकरी पानी है, या जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, यू सी योरसेल्फ। और फिर हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, पता नहीं मैंने उसके साथ क्या किया, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करता, मैंने तो इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, पता नहीं क्यों मुझे इतने क्वेश्चंस पूछ रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे ही ग्रिल कर रहे थे। अरे बाबा, the other person did not do anything, it's we who have done something. So कहीं ना कहीं वो एनालिसिस करना है हमें, तो वो है हमारा आइडल सेल्फ, जहाँ पे हमें पहुँचना है, एक संपूर्ण पूर्ण हम। और एक होता है जो हम ग्लास के थ्रू अपने आप को देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, और एक होता है हमारा अंदरूनी रियल सेल्फ। तो इन सब को कहीं ना कहीं हमें एकाग्रित करना है। दैट इज़ योर सेल्फ थियोरी। सो एक इंडिविजुअल सेल्फ हो गया, हमारे पर्सनालिटीज़, एट्रीब्यूट्स जो हैं हमारे, जो हमें अपने दूसरों से अलग करते हैं। रिलेशनल सेल्फ, हमारा रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, आसपास के लोग जो हैं उनके साथ, हाउ डू वी टॉक विद देम, हमारी बॉन्डिंग कैसे है। इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में आपने सुना होगा, डेल कार्नेगी जिनके बारे में मैंने आपको मेरे कोट में मैंने लिखा है, सो उनकी बहुत ही फेमस है। आई डोंट नो, एम आई अलाउड टू गिव यू नेम्स ऑफ 3 बुक्स विच हैव इम्पैक्टेड माई लाइफ? If any 3-4 of you give me a yes, I'll go ahead with that. Am I allowed to give you names of books? I don't know if you're into reading or not. Yes, I am. Okay, Chintan. Only Chintan wants it. Okay, okay, okay. So, okay, great. थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग देयर। तो 3 बुक्स जिनने मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट किया है, जो पढ़ के बहुत ही सारांश सी भाषा, सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग। One is the word which I've taken from the Magic Called Me's. So it is how to win friends and influence people. So that is by Dr. Dale Carnegie. It is about how people जो इंटरपर्सनल स्किल्स है यूज़ करके अपने आसपास के लोगों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो लाइकेबल बनते हैं। सो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डॉक्टर डेल कार्नेगी। सेकेंड बुक हमारी जो है, मेरे ख्याल से आपने या तो सुना होगा उसके बारे में या पढ़ा होगा। इट टॉक्स अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन, दैट इज सेकेंड बुक विच इज वंडरफुल। And the third book is by Dr. David J. Schwartz. It is The Magic Called Me. It is The Magic Called Me book by Dr. David J. Schwartz. It's a beautiful book. So you can, yes, Law of Attraction. Yes, ma'am. Yes. Yes. So these are books which have impacted. There are a lot of other books also which are beautiful out there. देखिए हर बुक, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगेगी जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे प्रॉपरली लाइफ में। इंसान भी हमें वो अच्छे लगते हैं जिनके साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर जिनके साथ नहीं कर पा रहे तो वो बुरे हैं। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग in life. It is just where we are connecting well with ourselves, so that goes well with us. So these books are where I have connected with. There are other books also which I'm sure you will be able to connect with. Just start reading and exploring about it. हमारा रिलेशनशिप हो गया, फिर है हमारा कलेक्टिव सेल्फ। इन सबको जुड़ा के मिला के जो हमारा एक संपूर्ण सेल्फ होता है, दैट इज़ अ कलेक्टिव सेल्फ। और फाइनली हम जिसे अपना मानते हैं या कहना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं, दैट इज़ अवर आइडल सेल्फ। सो अब सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में एक चीज़, मिट्टी का घड़ा हम सब ने देखा है, पॉट, मड पॉट, मतलब किस तरह से ये बन रहा है। हमारा जो सेल्फ बना हुआ है, हम जो बने हुए हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है वो कैसे बना, हमारे आसपास के लोगों ने इम्पैक्ट किया, पीयर्स ने easily. Okay, so I'll try and I'll just write down their names and send you chat box में. I don't understand this thing by easily understandable. ये language इनकी simple है। मैं बहुत साल पहले फर्स्ट बुक्स मैंने जो उठाई थी पढ़ने के लिए, सिंपल लैंग्वेजेस, ईजी लैंग्वेजेस हैं। स्टिल व्हाट आई विल डू इज, मे बी आई विल फाइंड आउट आपको अगर लैंग्वेज में दूसरी, आई डू दैट। यस आकाश, आई डू दैट। अब जो हम हैं एक मिट्टी के घड़े की तरह हैं। पॉटर हमने देखा है, पॉटर्स व्हील बनाता है, घड़ा बनाता है, उसे ना जब वो मट्टी लेता है, शुरू में मट्टी लिया, उसे व्हील पे रखा, उसे बहुत ही हल्के हाथ से उसे बनाना पड़ता है। बिकॉज अब ये जो हाथ हैं
वो प्रभाव है बाहर के लोगों का, और वो मिट्टी जो है वो हम हैं। जिस तरह से वो मिट्टी को हम शेप देंगे उसी तरह से वो घड़ा बनेगा। तो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर हमने ज़्यादा उस पर दबाव डाल दिया तो घड़ा एक साइड से शायद टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, या थोड़ा सा पक्का ना हो, या उसमें क्रैक्स हो। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, जैसे हम ग्रो हो रहे होते हैं, जैसे वो घड़ा बन रहा होता है, तो आसपास के लोग हैं हमारे, अब वो हमें पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं या नेगेटिव चीज़ें बताते हैं। अगर वो पॉजिटिव बताते हैं तो वो घड़ा भी अच्छा भला पूरा अच्छा सा बनता है। तो पॉजिटिवली मतलब उसे जगह देना, उसे वो फ्रीडम देना, स्पेस देना खुद के चीज़ों को समझने के लिए, एहसास करने के लिए, तो वो उसमें फिर पानी भी अच्छा और ठंडा रहेगा। लेकिन अगर हमें ऐसे लोग आसपास हैं हमारे जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, जो दबाव डालते हैं किसी चीज़ पे, तो अब घड़े को आप सोचो, दबाव डाला जाता है तो उसकी शेप थोड़ी सी नहीं आएगी ठीक, उसमें पानी भी उतना कम आएगा, दिखने में भी शायद वो बाहर से, सो अंदर बाहर दोनों चीज़ें। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो मैलिएबल जो वहाँ पे वर्ड है उसका मतलब ये है कि चेंजेबल, वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं। जितना बड़ा बढ़ते हैं, अब बड़ा जब बढ़ रहा है घड़ा, उसे देख लो लाइफ भी उतनी अपनी बड़ी बढ़ रही है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल दैट वी आर सराउंडेड विद, वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। एक और बुक है जो हमें कहती है कि यू बिकम द वे यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद द पीपल अराउंड यू। तो आप वही बनते हैं कई सालों में। अगर आप 5-6 साल किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ, इंसान के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, इट रब्स ऑफ ऑन यू। उनकी खूबियाँ, उसी तरह से हम भी प्रभाव करते हैं लोगों पे, जिस तरह से वो करते हैं उसी तरह से हम भी करते हैं। सो चूजिंग द सराउंडिंग्स, द कंपनीज, द एरियाज अराउंड अस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो इम्पैक्ट करता है हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बनते हुए। इसकी वजह से कहा जाता है मेजर इश्यूज होते हैं हमारे, डिप्रेशन से रिलेटेड हो गए। व्हाट एप्लीकेशन आर यू एबल टू सी नाउ? वो कहा था, एक रिसर्च हुई थी अभी जिसमें कहा गया था कि 14 साल से कम उम्र वाले जो लोग रहते हैं ना, उनमें ही वो बीज बोया जाता है डिप्रेशन का, नेगेटिविटी का, जिसकी वजह से वो आगे जाके कहीं ना कहीं एक नॉट, एक थ्रेड बन जाता है। सो दैट इज़ वाई सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हम अपने आप को, आसपास जो लोगों को हैं, अच्छे लोगों के साथ अपनी कंपनी बनाए रखें। अब अंदर से हमने समझ लिया, हमारा अब वक्त आता है हमें बाहर प्रेजेंट करने का खुद को। सो इट इज़ योर ब्रांड यू। इमेजिन एक दिन, और आई एम श्योर दैट कहीं ना आप कुछ लोग जो हैं वो शायद करते भी होंगे, अपना नाम गूगल में टाइप कीजिए और फर्स्ट पेज पे आपका नाम रिफ्लेक्ट होगा। इफ दैट इज़ हैपनिंग यू हैव, सो हम सब ब्रांड कहीं ना कहीं अपने आप में हैं। ब्रांड क्या होता है? जिन्हें लोग जाने। लेकिन हमारे कितने लोग जानने वाले हैं हमें, हमारा वो सर्कल कितना छोटा या बड़ा है, that is the only difference between all of us. But we are a brand in ourselves, we just need polishing of that brand. अब how do we create that, how does that happen to us? It is your image, हमारी image। तो एक अंदर सेल्फ इमेज एंड एक बाहर इमेज जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे मिशंस हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं। एक कोई भी कंपनी उठा लो, उनमें ये सब चीज़ें पाएंगे आप। उसी तरह से हम भी अपने आप में एक कंपनी है, ठीक है? तो हमारे इमेज क्या है, हमारे मिशंस, हमारे वैल्यूज़ क्या है, वैल्यू सिस्टम पे इंटरनल कोर वैल्यूज़, और हमारी विजन क्या है। अब मिशन और विजन क्या होता है? मिशन है आखिरी जो रास्ते पे हम चल रहे हैं अपनी विजन पाने के। एक विजन होता है लास्ट फाइनल गोल, कि ये मेरा एक विजन है, एक मेरा थॉट है। ये एक विजनरीज जो होते हैं देखते हैं कि हाँ बड़ी चीज़ करनी है, और उसे करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं जिस मिशन पे हैं, दैट इज़ आवर मिशन। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। अगेन टू डू दैट वी गो थ्रू अ process. How to avoid wrong perceptions that we have made sometimes. Yes, so positivity और negativity का एक जो impact रहता है ना हमारे ऊपर, what happens is it is said that 9 negative thoughts can damage the one positive thought that you have created. So it is that negativity बार बार जितने, सो अपने आप को अगर you have to sit with yourself and analyze कि मुझे अगर ये चीज़ impact कर रही है, क्यों कर रही है। सही लोगों के साथ बैठो, अपना SWOT, इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप करते हो, पेरेंट्स के साथ बैठो या ऐसे लोगों के साथ बैठो जो आपको सही सलाह देंगे, फिर आप समझो उसको एंड देन यू वर्क ऑन इट। इट इज़ अगेन अ कंटिन्यूस, वो जीनी, वो लैम्प को बार बार सही दिशा में रब करो, तब जाके आपका वो जो एक बना हुआ है। कई बार ये नहीं भी होता, बिकॉज देखो क्या है, हमारे सराउंडिंग्स जो है ना बहुत इम्पैक्ट करते हैं। अब जैसे कई चीज़ें दैट वी नो कि हमें करनी नहीं है,
हमारे दिमाग में हमें पता है कि ये है, नहीं करना है, लेकिन उससे एक्चुअल में पुट करना, उसे एक्शंस में लाने में हमें टाइम लग जाता है. सीखते 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 उम्र निकल जाती है हमारी, राइट. सो इट इज़ अ प्रोसेस, अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सो यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर गिविंग यू और रॉन्ग और राइट परसेप्शन. पहले तो यू हैव टू ब्रेक दैट. आई थिंक आकाश इज द वन हु इज आस्क्ड दिस, कि आपको पहले पता करना है कि व्हाई डू यू से इट इज़ रॉन्ग और इट इज़ राइट, एंड हाउ डू यू नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, राइट. सो स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. Values and vision, that is what you work on with. Everything has ABCD to it, so does our personal branding, and it is an amalgamation. एक पूरा completeness है inside out का. अब हमने inside और outside का पूरा मतलब समझ लिया है, हमें पता है importance क्या है inside का. सो व्हेन A इज़ योर अपीयरेंस, बाहर से आप जिस तरह से नज़र आते हैं, आपके ग्रूमिंग के टर्म्स में हो गया, हाइजीन के टर्म्स में हो गया, प्रेजेंटेबिलिटी टर्म्स में, एंड आपका अंदरूनी एटीट्यूड उस चीज़ को लेके, राइट. सो हाउ इज़ इट, एंड दैट ऑथेंटिसिटी इज़ द की हियर. जैसे मैंने कहा थर्मोस्टैट है, जब तक आप उसको, जो मैं चाहता हूँ एक्चुअल में, यू नो, फेक एक चीज़ जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकती. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, इसीलिए प्रोसेस जो है आइडेंटिफिकेशन का ज़रूरी है. ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब वो सही, आपको उसे अंदर से भी मानना है, तभी आप बाहर से भी उसे सही तरीके से दिखा पाएंगे. सो अपीयरेंस एंड एटीट्यूड हो गया. बी हमारा यहाँ पे है बिहेवियर हमारा, और बॉडी लैंग्वेज. अब बिहेवियर क्या है, एक चीज़ जो एक अंदरूनी क्वालिटी है. कैन यू सी योर बिहेवियर, यू कैन सी योर बिहेव, और वी कैन सी द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन थ्रू द बॉडी लैंग्वेज ऑफ दैट पर्सन. You know, the person is rude or the person is good enough, the person is a smart intelligent person bhi aap you can make out with the help of body languages. Again, body language is a deep topic in itself. Micro macro expressions, thoughts, gestures, postures that you have for ourselves. So you cannot see the behavior, you can see the body language. So behavior की वजह से आपका body language बाहर नज़र आता है. So behavior is inside, body language is outside. Communication skill and clothing. Now it is a skill दिखाई नहीं देती जब तक you don't put it to work. So you have it inside you, and clothing is the external concept of it. And the last one is आपका digital marketing, आपका digital presence. In today's world, this is something which is paid more attention to. How is your digital presence? लोग, कई जो organizations हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करते हैं कैंडिडेट्स के, या मे बी कॉलेजेस में भी जब है, और ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, टू चेक ऑन, टू स्टॉक ऑन देम. देयर आर टीम्स ऑफ पीपल हु आर अपॉइंटेड इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग. सो हम जो डाल रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, वो काफ़ी चीज़ें, अब आप अगर आप हमने, आई डोंट नो व्हाट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यू हैव बीन यूजिंग. व्हेन यू आर सैड समडे, यू विल पुट इन अ सैड थॉट, यू विल शेयर दैट सैड थॉट. सो इट गिव्स अवे द फीलिंग्स, the inner feelings of the person. And why should you appear as a sad? वो मोमेंट्री होता है, थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद, एंड देन वी गो बैक एंड डिलीट. सो लेट दैट नॉट कम, लेट दैट नॉट हैपन. बी वेरी केयरफुल अबाउट, बिकॉज एक बार जो प्रिंट हो गया डिजिटल स्पेस में, भले आप डिलीट कर दो, साइबर स्पेस में वो रहता है, वो कभी भी निकाला जा सकता है, राइट. यू विल बी सरप्राइज्ड. आप अपने नाम को जाके गूगल करो किसी और आईपी एड्रेसेस से, और थोड़ी हिस्ट्री चेक करो. आप कई बार आप चौकित हो जाओगे. यू वी लाइक कि ये मैंने कब किया पोस्ट, ये कैसे हुआ, अरे देखो ये कैसा है. सो जो भी हम डालते हैं, अब से बी केयरफुल अबाउट इट. जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, सो ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगी कि हमारी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है. अब इसके लिए काफ़ी सारे स्केल्स हैं. जो स्केल्स मतलब जो हमें बताएंगे हमारी पर्सनालिटी क्या है. सो पर्सनालिटी चेकर्स होते हैं, एक 16 PF होता है, दूसरा बिग 5 पर्सनालिटी होता है. ये जो है हमारा लेटेस्ट है, जो हम इमेज मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं टू चेक आउट योर पर्सनालिटी. कैसे पता करते हैं कि आप के कपड़े, आप कौन से, आपकी क्या चॉइसेस हैं, कौन से कलर के कपड़े आप पहनना पसंद करते हैं. सो देयर इज़ अ पर्सनालिटी कलर ऑल्सो. यू विल बी सराउंडेड बाय दैट कलर ऑलवेज, यू नो, इतना इम्पैक्ट होता है. और वो कलर आप पे इम्पैक्ट करता है बॉडी, माइंड एंड सोल पे. विल सी दैट हाउ. सो दैट आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, कि मैं कैसी पर्सनैलिटी हूँ. एम आई एन अप्रोचेबल पर्सनैलिटी, और आई एम एन
authoritative personality. Do I like mingling with people? Do I want to be in myself? And no personality is right or wrong. इसीलिए एक कंटेनियम है, ये देखो ऐसा, it is horizontal, it is not vertical, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, सब बराबर हैं. So that is how we are. We all are equal, we all are good. Every personality is good. So break that perception first. हम सब एक ही हैं. It's just कि कुछ चीज़ों की वजह से, जब सेल्फ इमेज हमारा बना था ना, तो कैसे इम्पैक्ट हुआ था लोगों की वजह से, एंड वी बिकम अप्रोचेबल और अथॉरिटेटिव. इट इज़ फाइन. अब ये स्केल कब हेल्प करता है हमें? पहले तो आइडेंटिफाई करो और फिर ज़रूरत पड़ने पर आजू बाजू वाली जो पर्सनालिटीज़ है बोरो करेंगे उसके ट्रेट्स टू प्रेजेंट अवर सेल्फ. सो दैट इज़ वेयर द स्केल इज़ इम्पॉर्टेंट. सो गर्ल्स के लिए डेलिकेट से स्टार्ट होता है एंड बॉयज़ के लिए जो है हमें स्पोर्टिव, रोमांटिक, क्लासिक, स्पोर्टिव एंड ड्रामेटिक से. कपड़े पहनने का तरीका, चीज़ें सेलेक्ट करने का तरीका, बात करने का, आवाज़ भारी है, सॉफ्ट है, गर्ल्स हैं कर्ल्स हैं, बालों में सॉफ्ट हैं, पेटीट हैं, लॉन्ग हैं. अब आप इमेजिन करो अमिताभ बच्चन जी को एक दबी हुई आवाज़ में. कैन यू इमेजिन हिम? रेखा जी को उनकी आवाज़, बिकॉज वो वैसी हैं, उनकी पर्सनालिटी, तो आवाज़ भी भारी, सो वो अथॉरिटेटिव साइड में आती हैं स्केल के. आलिया भट्ट, आई डोंट नो इफ यू लाइक देम, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स विच माइट अट्रैक्ट यू. सो आलिया भट्ट अगर हैं तो पेपी, वेरी टेडीट एंड पेटी गर्ल हैं, पेटीट हैं, तो उनकी हाइट भी थोड़ी सी नॉर्मल हाइट है, एवरेज हाइट है, आवाज़ भी उनकी चुलबुली सी है. सो यू कैनॉट, सो दैट इज़ हाउ अ पर्सनैलिटी इज़ इनसाइड. पूरा बाल का, हमारा फेस का, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी आवाज़, हमारे कपड़े पहनने का ढंग, अकॉर्डिंगली दैट इज़ हाउ वी फॉर्म इट. ओके, your body language is important. Now I may not be able to see you here, but this is a small activity. आप करिए और जब आप करेंगे अंत में आप खुद मुस्कुराएंगे अंदर में. मैं कहती हूँ कि आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कंपेरेटिव टू योर वर्बल कम्युनिकेशन. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो प्रभाव है, जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, आप सबसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मानेंगे मेरी बात को? जैसे मैंने अभी कहा, हाँ ना, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है, आपसे मिलके अच्छा लगा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा. फ़र्क है. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट, मतलब हम जो लोग हैं ना, हम बी पीपल, वी आर ब्रेन, वी आर वायर्ड इन अ वे कि हम नॉन वर्बल चीज़ को पहले लेंगे और जज कर लेंगे, और वर्बल जो वर्ड्स निकल रहे हैं उसका इम्पैक्ट हम बाद में सोचेंगे. ऐसा होता है. नहीं, आपने देखा, उसने देखा, उसका एटीट्यूड कैसा है मेरी तरफ. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पे इम्पैक्ट ज़्यादा करता है. अब आपको करना क्या है, जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, छोटी सी एक्टिविटी, एक्सरसाइज है, फिर ये बाद में आसपास वालों को भी कराना. मैं आपको देख नहीं पाऊँगी, इसमें बहुत मज़ा आता अगर सब देख पाते एक दूसरे को. ये फिंगर लीजिए ऐसे और ऐसे बाहर निकाल दीजिए. ठीक है, हम प्रूव करने जा रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है. नाउ आपको सिर्फ फॉलो करना है जो मैं कर रही हूँ. ठीक है, अब टेक योर फिंगर, गो दिस राउंड 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 राउंड, अप 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 अप, down 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 down, round 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 round. Place it on your cheeks, place it on your cheeks. Some smiles there, I'm sure, because ये एक्टिविटी कभी हमारी ऐसे ही नहीं जाती. दिस इज़ हाउ इट हैपन्स. सो प्लेस इट ऑन योर चीक्स. सो आई एम श्योर अगर आपने ये करी है, कई लोगों ने चीक्स पे हाथ रखा होगा, बिकॉज आपने मुझे देखा चिन पे रखते हुए, आपने चिन पे शायद रखा होगा. ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताने के लिए आपको, आप लाइटनिंग, कुदरत जो है वो भी ये चीज़ प्रूव करती है. लाइटनिंग और थंडर, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, पहले क्या दिखाई देता है? मैंने आपको जवाब बता दिया, पहले बिजली दिखाई देती है. लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड इन एयर. वाटर की बात नहीं कर रहे, एयर में, है ना. तो जो लाइटनिंग है, जो हमारा फिजिकल प्रभाव है, वो ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट करता है लोगों पे comparative to the words or the language that we speak. So this has to be again a book to study on body language. There's one definitive book on body language that is by a couple from Australia. So they're a very famous couple, Alan and Barbara Pease की definitive book on body language. Amazing book है, again an easy read, pictures के through देखेंगे. First book जो आई थी body language पे, that was by Julius Fast in the 1972. body language कब से है? जब से हम लोग हैं, लेकिन पढ़ना, उस पर सीखना, रिसर्च करना काफ़ी बाद में हुआ. अब ये सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पे हैं,
ये हम वर्बली हमसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर जितनी देर भी अभी तक स्क्रीन पे थे आपने इनके बारे में कुछ ना कुछ एक धारणा अपने दिमाग में बना ली. फॉर एग्जाम्पल ये जेंटलमैन जो है ये कौन होंगे? हु कुड दिस बी? दिस इज अ सर्वे स्लाइड. एनी आइडिया हु कुड दिस जेंटलमैन बी? कौन हो सकते हैं ये? इट कुड बी समवन, राइट? कोई तो होंगे. ये लेडी यहाँ पे, ओके सम आंसर्स हैं. ओके, ही लुक्स लाइक अ बिजनेसमैन है. हम थोड़ा सा लेट अस गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट एंड विल से ही लुक्स लाइक. ठीक है, हम एकदम जजमेंटल नहीं हो जाते वर्ड्स का. हाँ, बिजनेसमैन की तरह, राइट. अब देखिए सबकी धारणा कहीं ना कहीं सेम है उनके बारे में. सो दिस इज हिज इमेज अबाउट हिम टू अस. इन्होंने हमें वर्बली कुछ बोला नहीं. कैसे पता चला? सिमिलरली अब आप बाकी सबको भी देख लो. ये हमारी सर्वे स्लाइड है. ये लेडी यहाँ पे खड़ी हैं. इनको देख के ज़रूर हमने कुछ अपने मन में धारणा बना ली. अब ये यहाँ पे जेंटलमैन, इनके बारे में बताइए. 5th जेंटलमैन या सेकेंड लास्ट जेंटलमैन. सेकेंड लास्ट जो है स्टूडेंट की तरह लग रहे हैं, है ना. अगेन हम कहेंगे कि लग रहे हैं. अब इन्होंने तो हमें ये वर्बली नहीं बताया क्या है, लेकिन हमारे सामने है उनके खड़े रहने का तरीका, उनका स्माइल का तरीका. अब हमने आपको मैं बता रही हूँ आपके ब्रेन में क्या हुआ, और ये बहुत ही क्विकली होता है. फोर्ब्स मैगजीन में एक आर्टिकल आया था जो कहता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ की धारणा बनाने में पता है कितना वक्त लगता है? 7 seconds. 7, you heard that right. 7 seconds. It takes just 7 seconds to create an image about other person in our mind. और एक बार वो धारणा बन जाती है, फिर वो कितना भी उसको मिटाने की कोशिश क्यों ना करें, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में सुना है. सो बेटर द फर्स्ट वन बी द बेस्ट दैट वी कैन मेक. अब हमारे जिस तरह से हमने कपड़े चुनते हैं या जिस तरह से उसे पहनते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, खड़े रहने का स्टाइल. हाथ देखिए जो जेंटलमैन ने रखे हैं, उन्होंने अपने कमर पे, वेस्ट पे हाथ रखे हैं. दिस इज़ कॉल्ड पावर पोज. एमी कडी को अगर आप सुनेंगे, वो बॉडी लैंग्वेज के बारे में, वो बहुत ही हार्वर्ड में बॉडी लैंग्वेज पढ़ाती हैं स्टूडेंट्स को. उनके वीडियोज़ टेड टॉक्स हैं, जो आप अगर टेड टॉक्स अगर आप फॉलो करते हो, देखना अगर मौका मिलता है, जस्ट पिक देम अप एंड रीड. सो शी सेज द सेम थिंग. दिस इज़ द पावर पोज. शेर होता है कैसे दहड़ाता है, बिल्कुल जंगल का राजा है, तो आवाज़ भी वैसी, और वो बिल्कुल ऐसे फैल जाता है ना. तो इसलिए, और जब हम बंदर हैं या और कोई जानवर है तो हमें उसमें से आया तो हम कुंबला जाते हैं. अगर हम कभी लो फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं अंदर से, अगेन देखो अंदर बाहर का, सो हम कुंबला जाएंगे, अपने आप में बंद कर लेंगे. सो बॉडी लैंग्वेज में 2 चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं, ओपन एंड क्लोज्ड. क्लोज्ड अगर बॉडी लैंग्वेज हमारी है तो हम कहते हैं कि एक इंसान जो है वो शायद बात नहीं करना चाह रहा. ये एक इमेज हमारी पैदा होती है लोगों के सामने, ऑटोमेटिकली हो जाती है. जैसे हम भी दूसरों के बारे में बना लेते हैं और हमारे बारे में भी लोग बना रहे हैं. सो इट इज़ फेयर इनफ, वी कैन नॉट मेक देम और टेल देम रॉन्ग. ठीक है. अब आप मेडिटेशन करते हैं, हमारे इंडियन में योगा, आपको एक पर्टिकुलर पोज है मेडिटेशन का. दिस इज द पोज एंड यू कीप योर फिंगर्स एंड पाम्स ओपन. यू कैन नेवर क्लोज योर हैंड्स एंड डू द मेडिटेशन. ओपननेस, जितना ओपननेस रहेगा, रिसीविंग फैक्टर्स आसपास की एनर्जी से ज़्यादा रहेगा. इफ आई टॉक टू अ पर्सन विद अ क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज, द पर्सन विल हियर मी विद द क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज. मैं एक ब्लॉकेज बना लूँगी. इफ आई टॉक टू अ पर्सन विद एन ओपन बॉडी लैंग्वेज, स्माइल इज एन ओपनिंग, sprout is a closing. So if I talk to a person with an open body language, the acceptance is more. The person will understand me, it will be receptive towards me. So 2 चीज़ें आपको मेन याद रखनी है. बाकी तो बहुत डीप कंसेप्ट है, फिलहाल के लिए 2 चीज़ें आपको याद रखनी है. उसी तरह से 3 चीज़ों में बटी हुई है हमारी बॉडी लैंग्वेज: एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, जेस्चर्स. सो फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, बॉडी पोस्चर्स जो बॉडी के बैठने का तरीका, और जेस्चर्स आपके हाथ के मूवमेंट्स जो आप करते हैं, दोज आर जेस्चर्स. ज़्यादा ओपनिंग एंड दिस ओपननेस एंड क्लोज्डनेस, दैट इज़ व्हाट इट टॉक्स अबाउट. लेट्स मूव फॉरवर्ड देयर. अल्बर्ट मेहराबियन भी इसी चीज़ को प्रूव करते हैं. इनफैक्ट इनके ऊपर ही, इनकी जो रिसर्च है उसके ऊपर ही ये जो चीज़ है वो निर्भित है. वो कहते हैं कि हमारे टोटल कम्युनिकेशन जो है 100% है, उसमें से जो बॉडी लैंग्वेज, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस हैं,
उसकी जो तुलना, जो अमाउंट है, इट इज़ 55%। और ये जब सर्वे, जब रिसर्च उन्होंने किया था ना, तब से फेशियल एक्सप्रेशंस लिया था। अगर आप सोच लो आपके कपड़े भी इसमें इंक्लूड हो जाएं और आपकी पूरे जेस्चर्स भी हो जाएं, पोस्चर्स भी, तो अमाउंट, द रिजल्ट्स विल बी क्लोज टू 85%. So the way we present ourselves will impact, will create an indication in minds of others, and it is more powerful than the communication, the verbal communication that we do. vocals जो आपकी हैं 38 और verbal आपका है, verbal is the words, vocal again आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है, दैट इज योर वोकल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द कनोशंस, द नोटेशंस, प्रोनाउंसिएशंस दैट वी डू अबाउट द वर्ड्स, सो दैट इज योर वोकल, एंड वर्बल इज द वर्ड्स दैट वी यूज. सो वर्ड्स का जो इम्पैक्ट होता है, वो वर्ड, सेम वर्ड, यू वेरी रूड, यू नो, सो पूरा ही बहुत एकदम ही नेगेटिव है, you are very rude, but we can work on it, we can enhance it. So there's a difference, the way you use the words is important. ओपननेस और क्लोजनेस के बारे में जो बताया था, ये चार्ट उसी चीज़ को बता रहा है. सो ओपन एंड डिफेंसिव, ओपननेस में बॉडी लैंग्वेज टोटल ऑल विल बी ओपन, एंड क्लोजनेस में इज टोटली क्लोज. ये पोज आपने देखा है, दिस इज़ अ वेरी फेमस पोज बाय अ वेरी फेमस पर्सन. So this pose that we use is called a visionary's pose. Openness, ये पूरी फिंगर्स बंद करके रखना या ये रखना. So this is a open visionary pose. धीरूभाई अंबानी जी आपको हमेशा ये पोज में नजर आएंगे. Thinking, he is a visionary, thought. Similarly, अगर दो फिंगर्स आ जाते हैं, मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दे रही हूँ कि बॉडी लैंग्वेज कितनी डीप है. एक अगर चीज़ बदल गई तो उसका मीनिंग, चीज़ का जो कन्वे करता है मैसेज, वो बदल जाता है. अगर दो हैं, अगर फिंगर्स आ जाते हैं तो नेगेशन. दाऊद इब्राहिम का हमेशा देखा गया था फोटो विद द 2 फिंगर्स ऑन चीक्स. आईज का भी आपका सिमिलर होता है. सो जैसे पोस्चर्स देख लिया हमने, आईज का फेशियल एक्सप्रेशंस जो आपके चेंज होते हैं. 7 यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस हैं हमारे, स्टार्टिंग फ्रॉम द हैप्पीनेस टू द एंगरनेस. के बीच में जो आते हैं सरप्राइज हैं, और हर फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ आपका जो मसल्स है वो चेंज होता रहता है. कंटेम्प्ट, सैडनेस है, फियर है. कंटेम्प्ट मतलब किसी चीज़ के साथ हम सहमत नहीं हैं, सहमति नहीं दे रहे हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू कैसे जताते हैं. सैडनेस अगर है तो हमारे ड्रूपिंग लिप्स हो जाते हैं. फियर में हमारे आईब्रोज जो हैं वो रेज हो जाते हैं. डिस्गस्ट में हमारे जो नाक है उससे हम इम्पैक्ट करते हैं. एंड एंगर में हमारा पूरा फेस जो है, ऑल दी facial jaws muscles that we use, they ground, they go, we put pressure on them. So that is the angerness. इसलिए it is said happiness is the one which we, picture speaks 1,000 times more than the words. So you can just look at the picture और अपने दिमाग में आप, I'm sure बहुत सारे thoughts गए होंगे, smiles pass on हुए होंगे. I will not say much on this. Similarly, the way we know these are dignitaries, all the dignitaries of India, you can look at their body language. मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि ये मौका क्या था, और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि even people there are judged on it, right? So this was a time जब बराक ओबामा इंडिया आए थे, और ये सब जो डिग्निटरीज हैं खड़े हैं उनसे मिलने के लिए. तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है हमारा क्लोथिंग. क्लोथ्स हमारे कैसे होने चाहिए? ऑथेंटिक, अप्रोप्रिएट, अफोर्डेबल एंड अट्रैक्टिव. एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, सिर्फ ब्रांड पहनने से हम अच्छे लग सकते हैं, ये एक बहुत ही गलत इम्प्रेशन है, धारणा है. आप जो क्लोथ सेलेक्ट करते हैं वो आपके बॉडी के शेप के हिसाब से होने चाहिए. हमारा जिस तरह से हम स्ट्रक्चर्ड हैं वो स्ट्रक्चर्ड वैसा होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि हाई फाई ब्रांड पहन लिया और हम अच्छे लगेंगे. नो, हम एक दूसरे नॉर्मल क्लोथिंग शॉप्स में से, अगेन अंबानी जी के बारे में आपको बताऊं, ही वुड सेलेक्ट द क्लोथ्स फ्रॉम अ वेरी नॉमिनल स्टोर, बट ही वुड प्रेजेंट देम इन अ गुड वे, राइट. नरेंद्र मोदी जी, आपको बता दूं अगेन क्लोथिंग के बारे में, हैव यू सीन हिम इन सूट एंड कोट? उनको देखा है कभी सूट कोट में? वो नेहरू जैकेट पहनते हैं. जब वो यूएस भी गए थे इनफैक्ट, सो ही वुड वेयर दैट. सो ऑथेंटिसिटी है वो उनकी, बिकॉज ही इज़ कम्फर्टेबल इन दैट. और जब बराक ओबामा जी आए थे इंडिया में, उनसे मिलने, आई डोंट नो सूट की आपको कहानी, क्लोथिंग का इंपॉर्टेंस आपको पता है या नहीं. उन्होंने एक जैकेट पहना था जो आज राजकोट के एक मर्चेंट के पास है. दिस जैकेट वॉज मेड बाय जेड ब्लू, अहमदाबाद वाला जो स्टोर है, सीजी रोड वाला स्टोर. उस पर जो लाइन्स बनी हुई थी ना, उस पर लिखा था नरेंद्र दामोदर दास मोदी. पढ़ना इसके बारे में, ठीक है. सो क्लोथिंग कैसे इम्पैक्ट करता है, बिकॉज वो मिलने वाले थे किन्हें,
बराक ओबामा से, यूएस के प्रेसिडेंट उस समय जो इतने पावरफुल पोजीशन में थे, सो उनके जब वो मिल रहे हैं ऐसे इंसान से, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं वो। अब इंसान का नाम सामने देखना, बार बार पढ़ना, बराक ओबामा लाइंस में सिर्फ नरेंद्र मोदी पढ़ रहे हैं बार बार, राइट? सो दैट इज़ हाउ यू कैन इम्पैक्ट। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं और फिट्स जिस तरह के हम यूज़ करते हैं कपड़ों में। एक चार्ट है आपको जो दिखाऊंगी मैं। क्लोथिंग एक रिसोर्स है जिसमें हम वी बिकम वेरी अनकॉन्शियसली वी बिकम नेगेशन टूवर्ड्स इट। हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें उसमें से इन्वेस्टमेंट मिलते हैं। रिसोर्स क्या होता है? जिसमें हम खर्च करें और उससे इन्वेस्टमेंट मिले। सो क्लोथिंग इज ऑल्सो अ रिसोर्स एंड इट इज़ सेड बाय हर मैजेस्टी द क्वीन। वो कहती हैं कि एक जो ड्रेस है इंसान को एक आउटवर्ड साइन देता है, जिसमें से लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अंदर मन में क्या चल रहा है। क्लोथिंग हम क्या है, हाउ डज इट इम्पैक्ट अस, वाई डू वी वेयर? कुछ रीजंस हैं हमारे। फिजिकल, एक तो प्रोटेक्ट करने के लिए, एस्थेटिक, ब्लेंड होने के लिए आसपास के माहौल में, सोशली बिकॉज हम सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो कलर जो हम चूज़ करते हैं, ब्लैक वाइट, हमारे में ब्लैक कलर जो है, और इनफैक्ट इवन यूएस में, कंट्रीज़ में इट इज़ यूज़ फॉर मॉर्निंग। वाइट कलर हमारे में मॉर्निंग में यूज़ होता है, और ब्लैक कलर जो है वहाँ पे यूएस में फॉर मॉर्निंग। सो कलर इम्पैक्ट करता है अकॉर्डिंगली सोसाइटी का, किस सोसाइटी का हम हिस्सा हैं, उसमें क्या गाइडलाइंस हैं हमारी ड्रेसेस की, वो हमें फॉलो करनी। मॉडेस्टी पार्ट जो है हमारा, कवर्ड अप किस तरह से, हिजाब अगर यूएई में यूज़ होता है, यहाँ पे सलवार कमीज़ अगर कहीं यूज़ होता है, पैंट्स यूज़ होता है, स्कर्ट्स, सो अकॉर्डिंग द सोसाइटी दैट वी आर इनटू, उसी हिसाब के कपड़े हमें पहनने चाहिए। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमें एक देता है। जैसे ही हम कुछ, आपने सूट या ब्लेजर कभी देखा हो पहना हो, तो आपके शोल्डर्स भी ऐसे आप रेस करोगे पहनते में। टाई पहनोगे तो ऐसे बनाने लगोगे। लेडीज जब साड़ी पहनती है तो एक ग्रेसफुल लुक आता है। सो अंदर से हम वैसा फील करने लगते हैं। जो अंदर से एक फीलिंग होती है कपड़ों को लेके, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं एनक्लोथ कॉग्निशन। कपड़े कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारी अंदर की दिमाग को, भावनाओं को भी। दिस इज़ द साइंस बिहाइंड लुकिंग गुड एंड फीलिंग गुड। सो अच्छे कपड़े पहन के, अब वो पैटर्न्स, प्रिंट्स जो हैं, वो सिर्फ सेलेक्ट हमें सही से करने हैं, दैट्स इट। इट्स नॉट दैट वट एवर वी आर डूइंग, और सो इट इज़ एन, आप अपने लिए ना एक लुक बुक बना के रख सकते हैं। बचपन से लेके अभी तक के जितने फोटोग्राफ्स हैं, एक एक हर गारमेंट में, डिज़ाइन में, और आप देखो खुद आप में एक चेंज नज़र आएगा। जैसे जैसे स्टाइल्स बदलते हैं, पैटर्न्स, डिज़ाइंस बदलते हैं, मैच्योर्ड आप होते हैं, आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है आसपास की जगहों में से। सो वो लुक बुक एक देखोगे ना, अपने आप को, खुद को अपना एक पोर्टफोलियो नज़र आएगा, किस तरह से चेंज होता जाता है और किस तरह से इम्पैक्ट करता है। गर्ल्स के लिए क्विकली आई टेक यू थ्रू दिस। सो फुल स्लीव्स जो है मॉडेस्टी का पार्ट है। सो दैट इंडियन स्टाइल स्केल है ये हमारी। अगर हम साड़ी के साथ आप जैकेट का कलर देखेंगे, सो कलर अगर सेम कलर फ्लो होता है तो हमारी आंखें जो हैं एक सर्कुलर मोशन में जाती हैं। अगर यहाँ पे कुछ और कोई जो मैच ना होने वाला, एक हार्मनी ब्रेक करने वाला कलर हो, तो मेरी वहाँ पे आंखें जाके रुक जाएंगी, पॉपअप होगा, तो वो एक ब्रेकेज लाएगा। जैसे संगीत में होता है सारे गा मा प ध नि सा, सो अगर आप उसको सुर में गाते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है। उसी तरह से कपड़ों में इम्पैक्ट, अगर हम हेड से लेके टो तक, हम ग्रूमिंग कहते हैं उसे, तो अगर आप वो एक सीक्वेंस में जा रहा है, कहीं ब्रेकेज नहीं आ रहा है, तो सामने वाले को देखने में भी अच्छा लगता है, हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, हमें खुद को देख के भी अच्छा लगता है, और हमारे इम्पैक्ट जो होता है ब्रेन पे, इट इंक्रीजेज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो इट शुड बी इन हारमोनी लाइक म्यूजिक। हेयर टाइड अप अगर है तो दिस, इट वुड गिव यू एन इम्पैक्ट ऑफ आई एम इन माई पावर, आई एम इन माई कंट्रोल। दिस इज अबाउट कंट्रोल। when would you lose your hair or leave your hair loose? जब आपको मस्ती करनी है। सो माहौल के हिसाब से, मैं पार्टी में जा रही हूँ तो आई कांट वेयर अ सूट कोट, आई हैव टू बी इन माई पार्टी क्लोथ्स, बट व्हेन आई एम कमिंग टू अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट, आई शुड प्रेजेंट माई सेल्फ अकॉर्डिंगली, आई हैव टू बी इन माई कंट्रोल, people should take me seriously, I should not be taken for granted, राइट। कॉलर है हमारे स्टाइल स्केल में, कहते हैं एक कॉलर है, बंद होता है, कॉलर होता है, जिसकी वजह से रेस्ट कॉलर, सो इट गिव्स यू एन इम्पैक्ट। यहाँ पे हम टाई क्यों पहनते हैं, मेन जो है गले पे आपका ये कॉर्ड है, आपका वोकल्स यहाँ पे, सो इट रिमाइंड्स यू दैट यू आर इन योर डिग्निटी। टाई यहाँ पे टाइट करके पहनते हैं, बोस पहनते हैं लेडीज़, यहाँ पे ब्लाउज के बटन्स बंद करती हैं। सो दिस इज़ द डिग्निटी, द पावर दैट वी हैव। उसकी वजह से मेंटली भी इम्पैक्ट वैसा होता है, और हम वैसे ही प्रेजेंट करते हैं खुद को। अब
एंगुलर थिंग और सर्कुलर थिंग का कंसेप्ट है यहाँ पे। कुर्ता जो है, क्यों लेगिंग्स और जो सिगरेट पैंट्स हैं, कोई भी चीज़ ज्योमेट्री हमें बेसिक पता हो, अगर एंगुलर है शेप में, एंगल में कब कहूँगी, जब दो लाइंस मिलती हैं, दो स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं। कर्व लाइंस देखो अलग होती हैं, स्ट्रेट लाइंस जब मिलती हैं और जो एंगल बनता है, वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है, वो जो एंगुलर कपड़े हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो अथॉरिटेटिव इम्पैक्ट आता है सामने। इसीलिए जो सूट हम पहनते हैं, वो ब्लेज़र, वो एंगुलर है। अब जीन्स आप क्यों कहेंगे कैजुअल में आता है और फॉर्मल में नहीं आता, या लेगिंग्स हैं, बिकॉज दे आर कर्व्ड इन शेप, दे टेक द शेप ऑफ अवर बॉडी, दे फिट टू अ बॉडी। सो वो इम्पैक्ट है, एक कैजुअलनेस का इम्पैक्ट है। कोई ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि जीन्स फॉर्मल और कैजुअल, उसके बनावट ऐसी है, उसका जो कपड़े सिलाई ऐसी है जिसकी वजह से वो प्रभाव ऐसा देता है लोगों पे। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while choosing the fit of the clothes. So boys, denim jeans, keep it for a different occasion. Professional में you choose the pants and shirts. Similarly for girls, tunics and parallel जो आपके cigarette pants, आजकल तो बहुत options हैं, so they fall straight, they fall flat. Are we all clear with this? And closed shoes, बंद जो है, so tightness एक आपको देता है, that gives a impact. मेन के लिए जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग विद बिजनेस फॉर्मल, हमारे जो स्टाइल स्केल है, जो डिज़ाइन होता है, सो लेवल 1 पे है, सबसे ऊपरी लेवल पे। अगर आप कैजुअल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, अब एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना है। मैंने बोला कि सूट कोट पहनना है, बट हमारा इंडियन वेदर अगर उसे it doesn't give us that leverage to wear those types of clothes, but you should make sure that at least you're wearing a collared shirt and you have inshirted it. Even if you're avoiding a tie, wear a belt with it to complete the look. Have a matching shoes and socks which are going with your pants, right? So not required, not necessary कि आप हमेशा सूट कोट में। when I'm saying that you have to be on style level, at least be presentable enough. बंद, आपका बटन्स बंद करके, इन शर्ट करके, एंड देन इफ फॉर स्पेशल ओकेजन्स यू कैन गो फॉर, और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, डॉट डॉट्स, आप वेस्ट कोट आप यूज़ कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी देखो इन्होंने पहनी शर्ट के जो स्लीव्स हैं, जितना ज़्यादा मॉडेस्ट उतना अथॉरिटी ज़्यादा, जितना कम मॉडेस्टी उतनी अथॉरिटी भी कम। तो आपके हाथ में, हमारे हाथ में है कि लोग हमें कितनी इज्जत देते हैं और वो क्यों दे रहे हैं, किस चीज़ की वजह से, वो इम्पैक्ट करता है, राइट। आर वी ओके विद दिस? सो ये अप्रोप्रिएट, ऑथेंटिक, अट्रैक्टिव, अफोर्डेबल का चार्ट है। अप्रोप्रिएट होना चाहिए ओकेजन के, कहाँ पे हम काम कर रहे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है। ऑथेंटिक, खुद से ऑथेंटिक। अब जैसे कि आप मुझे फुल सूट कोट में कभी नहीं देखोगे, बिकॉज वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, राइट। सो मैं क्या करूँगी, एटलीस्ट कॉलर रखूँगी, अगर कॉलर नहीं है तो मैं स्कार्फ पहनूंगी, अपने गले को छुपा के बंद करके रखूँगी, स्लीव्स में फुल पहनूंगी और कवर्ड अप। सो इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक। यू विल नेवर सी मी इन dark red colors for formal wears because I'm not comfortable. You will very rarely see me in that red lipstick because I may not be comfortable in that. So it has to be authentic to me also. I should feel for it and it should be presentable. अट्रैक्टिव लगना चाहिए, क्लीन प्रॉपर होना चाहिए, आयरनिंग अच्छे से की गई हो, टैग्स जो हैं विजिबल नहीं होने चाहिए, कहीं से एक थ्रेड निकलता हुआ है उसके बारे में केयरफुल। सो बेसिकली ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए एक छोटी सी टिप है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ थोड़ी देर, निकलने से पहले, कहीं बाहर निकलने से पहले, इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले, हेड टू टो खुद को देखो, आपको खुद को पता लगेगा कि आप सिंक में हो या कहीं कुछ ब्रेकेज आ रहा है। वो आ रहा है तो उसे घर में ही जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी को यूज़ करके आप अच्छे से उसका इम्पैक्ट ला सकते हो। यू मे नॉट गो आउटसाइड एंड बाय थिंग्स, बट देन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हेन यू इन्वेस्ट, इसीलिए एक टिप छोटी सी आपको देती हूँ, सॉलिड्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, सॉलिड मतलब जिसमें ज़्यादा प्रिंट्स और पैटर्न्स नहीं होते ना, उसको मैच करना दूसरी चीज़ों के साथ आसान हो जाता है। और क्लस्टरिंग जो करना है, तो उसकी वजह से एक हमने वाइट शर्ट ले लिया, बेसिक ले लिया, उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें पहन सकते हो। एक प्रिंट वाला ले लिया तो प्रिंट में फिर दूसरे पैटर्न्स होंगे, दूसरे कलर्स होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम कलर्स और दूसरी चीज़ों के साथ कंबाइन हो सकें या जाएं, ठीक है। सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। इट हैज़ टू बी अफोर्डेबल, इट शुड नॉट पेन योर पॉकेट्स। सो वो अगर पेन करेगा पॉकेट में तो हमारा इम्पैक्ट भी वैसा आएगा। दैट्स वाई आई सेड कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ब्रांडेड जो हमारे कपड़े होते हैं वो हम उसमें अच्छे लगें।
हमें कैसे एडजस्ट करना है अपने आप को, दैट इज़ वेरी पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट। दूसरा हमारा आता है पार्ट कैसे बॉडी का, सो अट्रैक्टिवनेस कैसे आएगी, बॉडी शेप के हिसाब से कपड़े पहनना। बॉयज़ में आपका कट्स आते हैं शर्ट्स की, अगर आपको पता हो तो वी कट आता है, स्ट्रेट कट आता है, कर्व्ड आता है, स्लिम फिट आता है। सो यू हैव टू चूज़ एज पर योर बॉडी टाइप्स। बॉयज़ का जो एक बॉडी शेप है, अगर आपके शोल्डर्स हैं विच आर ब्रॉड, हमारे वी जो शेप है बॉयज़ में अच्छा शेप माना जाता है, राइट। सो आपके जो शोल्डर्स हैं ब्रॉड हैं and then lower part is like narrow, so that is a broader. Indian girls के लिए we are inverted triangular, narrow shoulders and broader. We are because हमारी जो body structure, जो हमारे bones हैं वही उस तरह से structured होते हैं, so maximum of us will fall into that category. ये देख लो प्रोफेशनल स्टाइल स्केल लेवल कौन से हैं, अगर हम मैनेजमेंट, पर्सनल बैंकिंग, फाइनेंस में हैं तो दिस इज़ हाउ, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर सेल्स एंड सर्विसेज, creative and communications, this is the style that we have to apply and use, and physical labor में अगर कुछ है comfortable। अब मैं NID में अगर सेशंस लेती हूँ, उनको मैं अगर बोलती हूँ कि आपको फुल सूट कोट में, उनका क्रिएटिविटी तभी बाहर आएगी जब उनके बाल थोड़े से घुंघरालू बड़े हुए होंगे, बट उनका प्रोफेशन वैसे डिमांड करता है। सो and then they may have that jhola, they may have that look, they may have the beard, so they can afford to keep it because उनका creativity तभी बाहर आएगी। But if they are going एंड वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके कुछ सेट रूल्स हैं, जहाँ पे आपको हमेशा क्लाइंट के सामने रहना है, तो देन यू हैव टू कम टू दैट लेवल एंड प्रेजेंट योरसेल्फ। सो इट इज़ एज पर द ऑर्गेनाइजेशंस और द फील्ड्स दैट वी वर्क इन, और हमारी फील्ड अगर हमने कोई चूज़ की है और वो अगर कुछ डिमांड करती है हमसे, सो देन वी हैव टू फुलफिल दैट, मेंटेन रखना है। कलर का इम्पॉर्टेंट रोल हमारा है लाइफ में, और क्यों है, बिकॉज कलर वुड इम्पैक्ट आवर बॉडी, माइंड एंड सोल। सो कपड़े चूज़ करते समय कौन से कलर्स हम चूज़ करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कैसे इम्पैक्ट करता है, हम सबका एक पर्सनालिटी कलर भी है, और एक अगेन देखो साइंस स्पिरिचुअलिटी को हम साथ में ला के, सो कंप्लीटनेस उस साइकिल को कंप्लीट करेंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर क्राउन चक्रा एंड गोज टू योर रूट चक्रा, सो दैट्स अ चक्र थियोरी। और हर चक्र का एक कलर है, और वो कलर जो इंसान में, जो चक्र, हम सब में 7 चक्र होते हैं, और जिस इंसान में जो जो चक्र ज़्यादा जागृत हैं, डोमिनेंट हैं, उस इंसान को वो चक्र या वो फील्ड या वो एरिया में वो बेहतरीन होगा, उसी तरह की चीज़ें आसपास पाना चाहेगा। छोटा सा एग्जाम्पल विजय माल्या जी का, उनको लाल रंग बहुत पसंद था, एंड रेड कलर इज़ द रूट चक्र। एग्रेशन की भी एक निशानी मानी जाती है रेड कलर, एनी कलर इन एक्सेस। उनको इतना पसंद था कि उनके आसपास जितने भी उनके क्रू मेंबर्स, उनका ऑफिस जो था, डिज़ाइन उनका, कैबिन उनका, एयरक्राफ्ट्स उनके, एवरीथिंग, छोटी टाई या शूज़ भी वो पहनते थे, तो ही वुड सेलेक्ट दैट रेड कलर। सो बिकॉज अभी केस स्टडी चल रही है, जो लोग हैं जिसकी वजह, व्हाट हैपन्स यू नो अराउंड इन इंडस्ट्री, सो it is said that one of the reasons for whatever happened with him is also because he was obsessed with red color. Similarly blue color जो है, उसका impact जो है calming, cooling का impact है। आप ओशन के पास बैठो, समुंदर किनारे बैठो, सी पे, आपको एक ठंडा एहसास। आप कोई भी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उठा लो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उठा लो, उनका जो लोगो है वो ब्लू कलर में होगा, बिकॉज ब्लू इज़ फॉर लॉयल्टी, ट्रस्ट। बैंक्स में क्या चाहिए, एजुकेशन इंडस्ट्री में हमारे क्या चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। ब्लैक आप उठा लो कलर, इट विल बी फॉर योर बोल्ड पार्ट। सो बेंचमार्क्स, मर्सिडीज़ हैं आपके यहाँ, जो लू वुइटन, हाई फाई ब्रांड्स हैं, उनके नाम ब्लैक में होंगे। एप्पल, आपका जो लोगो उनका ब्लैक में। सो इट इज़, दैट इज़ हाउ कलर इम्पैक्ट्स, इट टॉक्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। सो ब्लू का कामिंग इफेक्ट, इट गोज विबग्योर, जो आपका होता है विबग्योर, रेनबो का कलर उसी तरह से ऊपर से नीचे तक जाता है, क्राउन से लेके नीचे तक, दैट इज़ आवर कलर इम्पैक्ट्स अस। फाइनल इज़ आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स। आपको थोड़ा सा इस पे मैंने बताया था कि हाउ, व्हाट आर वी पोस्टिंग, और जो भी हम पोस्ट करें, अब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, आप अगर उस पर सोच समझ के, जैसे मैंने बताया साइबर स्पेस में रहती हैं चीज़ें, सो यू मे नॉट हैव टू गो बैक एंड डिलीट दोज थिंग्स, यू हैव टू understand and then post things, because people will go and check, and जो prints आप छोड़ते हो, जो छाप आप छोड़ रहे हो, उसके बेसिस पे लोग इमेज, इम्प्रेशन, हमारा ब्रांड, हमारे बारे में एक धारणा बनाते हैं। हम भी बनाते हैं ना, तो वो भी हमारे बारे में बनाते हैं। दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। दे विल गो एंड सर्च यू, दे विल गो एंड स्टॉक यू, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक एलिवेटर स्पिच टूल है, और एक टूल है जो हम यूज़ कर सकते हैं to understand that.
आपका डिजिटल प्रेजेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव रहना है. लिंक्डइन मैं आपको कहूँगी, इफ़ दैट इज़ अलाउड from the university side also, it is very important that you open up your accounts on LinkedIn because प्रोफेशनल है. ट्विटर आप चूज़ कर सकते हो. इंस्टा के मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट इट डिपेंड्स आप कौन सी इंडस्ट्री में हो. सो आई मे नॉट बी वेरी पर्सन हु इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स इंस्टाग्राम एंड ऑल. मार्केटिंग इट्स फाइन, बट लिंक्डइन इज़ समथिंग जो आपको ज़रूर खोलना चाहिए. लिंक्डइन पे अपना अकाउंट खोलिए, प्रोफेशनल अकाउंट, प्रोफेशनल फोटोग्राफ के साथ पूरा अकाउंट कंप्लीट कीजिए अपना, तो 100% कंप्लीटेंस उसमें आना चाहिए. आपको जो आपके मार्केटर्स फील्डर्स हैं जो हंट करते हैं फॉर सोर्स करते हैं candidates, they will go and check you there, they will go and stalk you there. So there you have to be presentable. पहले स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, आसपास जो लोग जानते हैं आपको वो कनेक्शन बताएगा. आई डोंट नो इफ यू हैव एक्सप्लोर्ड लिंक्डइन, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर इट, इट विल हेल्प यू. तो पहले उनके साथ कनेक्शन बनाइए एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली. सो बाय द टाइम यू रीच योर फोर्थ ईयर मे बी यू कैन हैव 500+ कनेक्शंस, अगर आप अभी से उस पर काम करेंगे. ऐसे लोगों को कनेक्शन में रखिएगा जो कि आपको आपकी फील्ड जिसमें आपको आगे जाना है, जो आपके गोल्स से रिलेटेड, सो उससे कनेक्टेड आपको पोस्ट मिले, या वो जो पोस्ट करते हैं वो पढ़िए, उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, कुछ कमेंट्स कीजिए उस पर, तभी आप नज़र आएंगे. देखिए सूरज को भी चमकने के लिए ब्राइटनेस इतना वो है, इट इज़ फार फ्रॉम अस, बट इट रिक्वायर्स दैट ब्राइटनेस टू शाइन सो दैट इट रीचेज अर्थ. तो हमें भी अगर शाइन करना है सो वो फुल पावर लगाना होता है हमें चारों तरफ से, सो दैट वी शाइन दैट ब्राइट, right? So it has to be from all the sides that we do it, and do it with a very viable mind. अपना एक छोटा ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं. पैशनेट हो अगर किसी चीज़ को लेके, उसके बारे में कोई एक्टिविटी ग्रुप क्लब्स का हिस्सा बनो, जितना हो सके एक्सपीरियंस लो, एक्सपोजर लो, जिसकी मदद से आपको अगेन आपकी जो पर्सनालिटी है इनर से वो निखरती जाएगी. एलिवेटर पिच, इंट्रोडक्टरी पिच होता है एक अपने बारे में. अगर मैं आपको इमीडिएटली कहूँ चलो आज मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, या आप एक ऐसे इंसान को लिफ्ट में, एयरपोर्ट पे ऐसी जगह मिल रहे हो जिनसे आप हमेशा जॉब पाना चाहते थे, अब वो 2-3 सेंटेंसेस ऐसे कौन से हैं जो आप उनसे कहेंगे अपने बारे में कि वो आपको उठा लें, नौकरी दे दें. या आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आपके आइडिया में इन्वेस्ट करें, आपके पास तैयार हैं वो सेंटेंसेस, अभी शायद हमारे पास नहीं हो. वर्क ऑन दैट, फाइंड आउट, दैट इज़ योर एलिवेटर स्पीच. आपके यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, ऐसी क्या चीज़ है जो सुनते ही सिर्फ 3 सेंटेंस, उनके पास ज़्यादा समय नहीं, सोचो सिर्फ आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा मैक्सिमम, राइट? सो इसीलिए कॉन्सेप्ट को एलिवेटर स्पीच कॉन्सेप्ट किया जाता है. सो वर्क, प्रिपेयर योर स्पीच. इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपके बारे में जाके तारीफ करें, आपकी ब्रांडिंग करें. सो उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस एंड वर्क ऑन थिंग्स. First impressions are the lasting ones. Why not make them the best one? Because your image is your inside out. I have I'll just sum it up with the 6 pointers that we have. So first, have a clarity कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ. Do I really want to do this or am I pushed to do this? तो वहाँ पे आपकी आएगी authenticity. So sink in आपके values के साथ, walk the talk, जो मैं बोल रहा हूँ वो ही मैं वैसा, आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ सिमिलर वे. वो दोनों एक पैरेलल में होना चाहिए, अमालगमेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. इट शुड लुक लाइक मिरर, आपका जो इमेज है दैट. रिमार्केबल हमें छोड़ना है. सेथ गोल्डन की एक बुक है, इमेजिन, से वर्ड सुनो आप और आपको लग रहा होगा पर्पल काव, ओ माई गॉड व्हाट एन यूनिक थिंग, पर्पल काव सुना है. बट वो काव जब वो बुक जैसे जैसे ख़त्म होती है, आप पढ़ने लगते हैं, सारी जो वहाँ की विलेज है सब लोग अपनी काव्स को पर्पल कर देते हैं, बिकॉज दैट काव इज़ यूनिक. और वो यूनिकनेस को फॉलो करने के लिए, सो हम में वो पर्पल थिंग क्या है, विच इज़ दैट डिफरेंट थिंग इन अस विच विल मेक अस रिमार्केबल. एंड देन यू क्रिएट अ स्वीट स्पॉट देयर, जब वो आपका ब्रांड होता है जो मैजिक बनाता है, इंक्लूडिंग योर पैशन. यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट थिंग्स, यू हैव टू फील इट and make others feel. So it has to be felt by others also that you are passionate about it. When I say that I'm passionate about something, I'm passionate about trainings, I'm passionate about talking, the person who would listen to me should also feel, oh yes, there should be smile. कहीं ना कहीं एक पूरे प्रेजेंटेशन जब मैं दूंगी तो वो लोगों के मुखड़े पे एक स्माइल आनी चाहिए, oh yes, and then I know I'm connecting, I'm doing the right thing. So find out your passion. कंसिस्टेंसी रखनी है उसमें, टाइम एंड अगेन ब्रेकेज नहीं लाना है. आएंगे हर्डल्स आएंगे, डोंट फॉल, कीप ग्रोइंग.
What I say is, when my daughters were born, I said you can walk, you can fly, you can swim, you can fall, but never stop. So never stop, keep going. So consistency is important with a distinctive design you should have for yourself. All right, there's a short video, and this video, I think it's on the movie. If you have a time, or I can just forward that video. It's about the movie again. I'll give you just hint of the video, and then I'll forward the link maybe, and then you can watch it. What we started with, the magic called me, and we'll end with the same thing, Aladdin and the lamp. उस मूवी में एक बहुत इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट है जिसने मुझ पे बहुत इम्पैक्ट किया. जब वो जीनी, आई डोंट नो इफ ऑल हैव वॉच्ड इट, वो जीनी ने प्रिंस बनाया अलादीन को. हमें स्टोरी पता है, बेसिक स्टोरी तो पता है. तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें प्रिंस सिर्फ बाहर से बनाया है, अंदर से तुम अभी भी वो अली हो. So unless you change from inside, if you want to change from inside, तो वो confusion रहेगा ही हमेशा कहीं ना कहीं. So वो दोनों अंदर और बाहर की चीज़ें, तो जीनी भी हमें, हमारा अंदर का जो जीनी है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा सेल्फ इमेज है, वो चेंज नहीं होगा जब तक हम उसे बाहर से अपनाते नहीं, उसे सिग्नल्स नहीं भेजते, उसे ऑर्डर्स नहीं भेजते. So that is what the video is about. You can watch that. And I think we can just wind up there. I would love to take up questions, one or two, if there are there. Thank you. Thank you. Wonderful, Shmita. Could you unshare the screen so that we can see you properly? I will. We see, appreciations coming in. Thank you. Yes. There are all appreciations. I don't think there is any question as such. Maybe had there been a physical session, the things would have been different. Just to, Yeah. Just to Yeah. go with the formality parts. Yeah. In fact, it was awesome. So say. Great. In fact, I would like to have my reflections, what I learned from this, my takeaways rather, I'll be representing and voicing for student, perhaps, the ABCD of our image, that was wonderful. Very easy to remember because A, B, C, D, right from appearance to behavior, to communication, to digital footprint, which is actually, we are living in a tech age, perhaps, so that is very important, that how we, project ourselves on digital platform. That's great. And what was the most punching, phrase for me was that a person, creates image of a person, right, of other person in 7 seconds. That's wonderful. Actually, that's true. That's true. Even I experienced that first impression, no matter, the person has whether spoken or not, whether behaved with me or not, but then something is there, which is conveyed to us. It happens, yes. Which conveys to us. So perhaps that 7 seconds was the impression and experience with you that you were invited today again, in the induction program of I live up to the expectation, and inside is also same as what is outside. Vyasar has also, put on his video to say something, certainly, because that is what, we feel. Could you please repeat the 3 books? I will forward the names to Namrata ma'am with the author's name, and then I think she can forward it from there. Del Carnegie ka tha, or And the Law of Attraction. Law of Attraction की तो वो मूवी भी बनी है उसके. मूवी भी है. अगर हम movie visual भी है. learners हैं, कुछ होते हैं जैसे जो visual learners हैं and readers हैं, तो जी, वो मूवी दिखा सकते हैं, हिंदी वर्जन भी उसका अवेलेबल है. So over to quickly Vyas sir, though he was putting off his video, but then something was going and then he would like to reflect. Sir, Vyas sir. No, Namrata madam, thank you very much for bringing Asmita ma'am on the board, and it was an excellent lecture, what I can say. A complete analysis of human being and how you should be. Actually, I remember my days at Nirma when I was delivering for non-verbal cues during the induction program for the students, first year students. And I was delivering for 2 hours almost over there. And at that time also the same thing, what is the international behavior?
Like when you meet like Trump and Putin, when they meet, how they behave, what is their body language, and their body language says a lot that what kind of language is going on, what kind of coordination is going on between them. So that's what you narrated over here also. And yes, I always say my student that your body language, your communication, that is verbal, non-verbal, both means a lot, and it includes everything. Like you talk, you whatever your body language when you talk. I just give them example of Govinda, like how Govinda, talks in a film. It is mainly body language where he talks. Exactly. That is not by verbal. Like what you rightly narrated. One example, "Kahan Gangu Teli or Kahan Raja Bhoj." So if you like that, if you say "Kahan Gangu Teli or Kahan Raja Bhoj," Yes. then it will not match with your wording, what you are saying. So it is a misleading kind of behavior. You mentioned like you have to touch your cheek. So people will follow your behavior, your body language, will not follow your words. Words. It's the common human tendency. So same thing happen over there. So it is very important what you are behaving, your gesture, your posture, how you behave, how you act, and it should be supplement to what you are saying. And yes, other things, personality development, your occasional dressing, that is also very important. You should not be Salman Khan all the time. You should look like executive when you are in the meeting, and when you are on the picnic, it's okay if you are like Salman Khan. So this is what a very correct and very good analytical kind of the lecture you have delivered today. So it's a fantastic lecture. Thank you very much. Thank you so much. Body language, especially, it has been my research topic, so I just love about it. Yeah. So Yeah, it was very detailed analysis, I could say. thank you so much. I'm glad you all liked it. Thank you. Thank you. Thank you, Vyas sir, for your reviews, especially, when you said that there should be perfect congruency between verbal and non-verbal. That is very, very crucial, sir. Certainly, sir, very crucial. Thank you so much, sir, for being with us and encouraging. And thank you, Hashmita, once again. Inside, outside, the magic in me is the mystery, which you have opened before our students, and hope they will take it forward and be successful in their life, applying all those tricks and magics, which you have unfolded and shared with them, revealed to them rather, Thank you so much. I wish them all the We best. wish, yeah, we wish you be on campus, as and when we feel like it's things are normal. So yeah, certainly. So for one-on-one interaction with the students, thank you so much once again. Industry University wishes you safety and health. Thank you so much. I Yeah. wish for the same for you all, and thank you so much for the opportunity, Vyas sir, Namrata ma'am, and Prachi ma'am. I hope I was audible after that for the presentation. I'll work on that. Yes, yes, you want to know that, certainly. Students, there are a couple of announcements, which again, we will be, announcing tomorrow also. First thing is, first and foremost thing, you are worried about your transport and your hostel stay and your coming to college and the timings. All that things, will be announced tomorrow. We have announcement session, maybe post lunch. Yes, in the morning, you have to begin your day at 10 o'clock, unlike 11 o'clock today. Tomorrow is the real induction. Real induction, ये कोई नकली नहीं था, ये pre-induction था, but actual induction and orientation to Industrial University begins tomorrow at 10 o'clock. So 10 o'clock sharp you join, because we'll have a prayer, and virtual prayer is also there, which is very powerful, because we always begin any auspicious thing with a prayer and offering, to the Almighty. So tomorrow 10 o'clock, join with us, and we'll share with you and take you to all the introductions and make you familiar with the functioning of Industrial University, and we'll have the detailed announcements regarding your stay, regarding your coming to college, your timings, and other formalities, or any other questions you have, because both the deans will be there, who will be answering you to all your queries. Okay,
So till then, goodbye. Tomorrow, 10 o'clock sharp. Jai Hind. तकलीफ ना पड़े बाकी और भी कैसे तो So, ma'am, shall I wind up? Yeah, you can wind up, Prachi. Okay.